एंड आई वॉज वेरी ओवर कॉन्फिडेंस कि यार अब तो मुझे सब आता है और मैं जाऊंगा और आई विल क्लियर दैट पर्टिकुलर एसएसबी एग्जाम। सो वेदर इट्स अबाउट एसएससी टेक एंट्री, टीजीसी एंट्री और नेवी टेक, तीनों एंट्रीज के बीच में डिफरेंस क्या है? बिकॉज दे ऑल आर टेक्निकल एंट्रीज। क्रिस्प रखो स्टोरी, योर नरेशन शुड बी क्रिस्प एंड क्लियर। मैम यहाँ पर मैं थोड़ा ब्लंट होना चाहूंगा कि जो लोग भी ये सोचते हैं कि 9 to 5 और 9 to 6 हमारी जॉब चलती है, मैम मैं अपना केस बताता हूँ। देयर वॉज अ ट्रेजेडी हैपन इन दिस जर्नी। आई लॉस्ट माई मदर एंड ऑल द हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी केम इन टू माई शोल्डर। मैं ये बहुत गलती करता था स्टार्टिंग के उसमें, मैं स्टोरी नहीं सुनता था, बस अपनी ही नरेट करने में लगे रहता था कि क्या गलती मैं करता था। सबसे पहले तो पिक्चर जो आती थी उसको ऑब्जर्व नहीं करता था। You have faced 8 screen outs. Hi everyone, welcome back to Defense Roger, and I hope you're doing well. My name is Sheetal Yadav, and today's episode is really very special because today we have Kamal, who got the recommendation in 17th attempt. Over this journey of 17th attempt, he has faced 8 screen outs, 8 conference out, and finally, in his 17th attempt, he has got the recommendation for SSC Tech entry. In this episode, we have tried to cover various scenarios. One of the factors is that he was not able to clear any of the written exams, but he keep on preparing for it. So the importance of written exam is very crucial for the defense preparation. Secondly, he was preparing along with his job. Third is he is coming from a background where he had scored good marks in his college, but his 10th and 12th percentage is low. So we have tried to cover so many different factors in this video, and I'm sure you will get to learn a lot of different things, and that will definitely add value to your preparation. Without any further delay, let's get back to the video. Hi Kamal, welcome to the channel. Hi, ma'am. Thank you for being invited me in this channel, in this platform, especially. केवल योर जर्नी हैज बीन वेरी डिफरेंट एंड बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि जहाँ पे मिथ है वो आपकी स्टोरी से को रिलेट करता है। लाइक 10th एंड 12th में अगर परसेंटेज लो है तो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन रहता है कि यू आर नॉट अ ऑफिसर काइंड ऑफ मटेरियल। इस तरह की स्टेटमेंट्स मैंने सुनी है। एंड जैसे जैसे अटेंड बढ़ते हैं तो एक और मिसकंसेप्शन दिमाग में आता है कि आपके चांसेस कम होते जा रहे हैं। यू हैव गॉट रिकमेंडेशन इन योर 17th अटेम्प्ट। दैट्स अ ह्यूज गैप, एंड बीच में 8 screen outs, 8 conference outs, एंड देन इन योर लास्ट अटेम्प्ट यू हैव गॉट द रिकमेंडेशन। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि 4-5 अटेम्प्ट दो, नहीं होता है तो ठीक है, एंड यू हैव गॉट द मेरिट। सो समवे और द अदर योर जर्नी हैज बीन रियली वेरी इंस्पायरिंग। आई वांट टू नो इट फ्रॉम यू, कि आपका अब तक का सफर कैसा रहा एंड किस तरह से बैकग्राउंड से आते हैं। यू आर कमिंग फ्रॉम सिविलियन बैकग्राउंड और मिलिट्री बैकग्राउंड, एंड किस तरह का एजुकेशन आपने परस्यू किया है। उसके साथ साथ पार्टिसिपेशन थ्रू आउट योर जर्नी किस किस चीज़ों में आपने रखा है, कितने अटेम्प्ट का जर्नी था, कौन से अटेम्प्ट में रिकमेंडेशन मिला। सो दैट ऑडियंस हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ। Yes, ma'am. So I would like to start it from my full name. My full name is Kamalupriti, and I am born and brought up in Haldwani, a city in Nainital district of Uttarakhand. And I have done graduation in engineering from Uttarakhand Technical University. And they were there. I was also a topper of a branch EC. And ma'am, my family background. Talking about my family background, my father has served 17 years in the army. वाह। He was in the 20 battalion of Kumaon regiment. He wanted to serve more, but due to some circumstances, like he has undergo around 6 to 7 operations. So after that, he was not able to continue his service. So from there onwards, there was something in my mind that मुझे ये करके दिखाना है आगे, मुझे इस जर्नी को फॉरवर्ड ले जाना है. And I have done my schooling from Kendriya Vidyalaya and DAV. And I have spent almost 9 years of my life in Kendriya Vidyalaya, school in आर्मी कैंट. तो वहां से मुझे डेवलप होना स्टार्ट हुआ धीरे धीरे करके कि मुझे आर्मी में जाना है. एंड वेन एवर आई सॉ द यूनिफॉर्म पर्सन, मुझे लगता था कि यार हाँ, कि मुझे ना ऐसे बनना है करके. द डिसिप्लिन, द कल्चर, आर्म फोर्स कल्चर, like every people from different corner of the nation come together and live in a harmony, like मैम इन अ वे इट्स बाइंड अ सोसाइटी. तो वो मुझे ना बहुत अच्छा लगता था कि हमारे स्कूल्स में कोई इवेंट हो रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, तो वो चीज़ मुझे काफी अट्रैक्ट करी. Although my 10th and 12th percentage was not up to that mark, I got 63% in class 10th and 60% in my class 12th. To be honest, पढ़ा नहीं था और थोड़े बेसिक्स भी क्लियर नहीं थे. तो बुक से पढ़ता था, जो भी नोट्स थे तो नहीं आता था, समझ में नहीं आता था. तो वो चीज़ मेरे उसमें रही है, जर्नी में रही है. मैंने एनडीए दिया था, स्टार्ट मैंने एनडीए से करा था कि करा. आई हैव गिवन 2 times.
तो वही था, मेरे बेसिक क्लियर नहीं थे मैथ्स वगैरह, मैं दो तीन डिफरेंशिएशन देख लेता था एंड इंटीग्रेशन वगैरह देख लेता था, तो उससे सोचता था हाँ हो जाएगा वगैरह। तो उस टाइम पे ऐसे गाइडेंस भी प्रॉपर नहीं मिली मुझे। तो उसके बाद आई हैव डिसाइडेड कि लेट्स फोकस ऑन टू माय इंजीनियरिंग देयर। मैम मेरे को ये था एट दैट टाइम 2016 का टाइम था वो, एंड देयर 4G केम। तो उस टाइम पे मुझे ये था कि हाँ अब मेरे को अपने बेसिक क्लियर करने, यूट्यूब वगैरह काफी फेमस हुआ था उस टाइम, 4G आया था। तो आई हैव स्टार्टेड क्लियरिंग माय डाउट्स, एंड although I found that in this journey 10th and 12th my written communication was not up to the mark, although my handwriting was very good, and उसके बाद मैंने कॉलेज में पढ़ना स्टार्ट किया। तो उसके बाद मैं थोड़ा ब्रांच टॉपर पढ़ा। एक्टिविटीज मैम, मुझे बचपन से मैं एक कॉन्गो और ढोलक प्लेयर रहा हूँ, क्लस्टर भी, आई पार्टिसिपेट इन क्लस्टर ऑल्सो। सो आई लाइक टू प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आई लव टू पार्टिसिपेट इन एवरी स्पोर्ट्स, लाइक एनी स्पोर्ट्स आई like to play. And right now I love to do gyms workout, like traveling, making videos, editing, videography, all kind of stuffs I basically like. So my journey of SSB has been started from 13th of March 2020. At that time, I got screened out. That was my first attempt, and I was like, I took coaching from any institute. मैंने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोचिंग ली थी, एंड आई वाज वेरी ओवर कॉन्फिडेंस कि यार अब तो मुझे सब आता है। हाँ, और मैं जाऊंगा और आई विल क्लियर दैट पर्टिकुलर एसएसबी एग्जाम। द मोमेंट आई गेट, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्यों स्क्रीन आउट हुआ। आई थॉट कि हाँ वो लोग बच्चे को ज्यादा ले लेते हैं, उसने ज्यादा बोला था, उसको ले लिया, मुझे नहीं ले पाए करके। अगेन मैम ये सारी जर्नी चलती रही, 8 स्क्रीन आउट, 8 कॉन्फ्रेंस आउट, एंड आई गॉट रिकमेंडेड ऑन माई लास्ट एंड 17 अटेम्प्ट। Okay, and you have merit as well for SSC Tech. तो बहुत फर्स्टली मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कमल। देयरफॉर ये जो डिस्कशन है, मुझे लगता है आपने हर तरह की एंट्री को बहुत बारीकी से देखा है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम हर चीज़ को बहुत डिटेल में डिस्कस करें। स्टार्टिंग विद यू हैव गिवन ऑल काइंड ऑफ टेक्निकल एंट्रीज, एंड मेरे को लगता है काफ़ी सारे लोगों को इनके रिगार्डिंग अवेयरनेस ही नहीं है। सो वेदर इट्स अबाउट SSC टेक एंट्री, TGC एंट्री और नेवी टेक, तीनों एंट्रीज के बीच में डिफरेंस क्या है? बिकॉज दे ऑल आर टेक्निकल एंट्रीज, बट आई एम नॉट श्योर दैट एवरीबडी इज अवेयर अबाउट their vacancies, the competition level, and every kind of thing, the merit also. यस मैम। तो मैम, if any person has done BTech or engineering from any institute, he or she, basically, I'll go with the boy one, Hmm. male candidates, and I'll talk about the female candidate. So for the male candidate who has done the engineering, he has opportunity to give 6 SSB in a year. The first technical entry is the TGC, Technical Graduate Course. The second one is Short Service Commission Technical Entry, and the third one is the Navy Tech. For TGC and SSC Tech, these both are entry of Army. And if anybody get recommended for TGC, he will go to IMA Dehradun. This is the permanent commission entry. And the short service commission is basically for the short service and for OT Gaya. सो मैम, इनकी हर TGC हो, SSC टेक हो, नेवी टेक हो, इनकी हर साल दो दो SSB आती है। Hmm. And for talking about the age limit, TGC and SSC Tech has a age limit around 26 तक रहती है। 27 आपको एकेडमी में होना पड़ता है उसके लिए, 27 of years लिखा, उसमें एज लिमिट आपकी 27 लिखी रहती है, बट आपको 27 आप क्रॉस नहीं होनी चाहिए Hmm. बिफोर SSB, गिविंग SSB। एंड नेवी टेक आपकी अराउंड 24 और 25 तक रहती है। नेवी टेक और SSC टेक जो है, ये दोनों शॉर्ट सर्विस कमीशन है, एंड TGC आपकी परमानेंट कमीशन है। सीट्स की बात करें मैम, TGC में अराउंड 30 सीट्स है, and TGC is properly for the male candidate, while SSC Tech and Navy Tech are for the female candidate also. And SSC Tech में around 350 सीट्स है मेल कैंडिडेट्स के लिए, एंड अराउंड 29 to 30 सीट्स है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। वेयर नेवी में मैम अलग अलग ब्रांचेस है, जैसे एग्जीक्यूटिव है, हाइड्रो है, नेविक है, पायलट एंट्री है, तो उनकी अलग अलग प्रॉपर वैकेंसी रहती है। अप्रोक्सीमेटली 150, अगर मैं ओवरऑल बोलूँ तो 100 to 150 रहती है। अब मैम आजकल अभी जो रिसेंट अपडेट आया है TGC में, वो ये आया है कि कैंडिडेट कैन सेलेक्ट, 2 सेंटर विल बी गिवन टू द कैंडिडेट, बट उनके उसमें ये रहेगा कि एक सेंटर में, जैसे अगर मैं एक बोर्ड लेता हूँ, 20 SSB लेता हूँ भोपाल में, तो वो एक ही बैच रहेगा TGC का, उसके अलावा बैचेस नहीं रहेंगे। तो नाउ पहले क्या होता था, 30 सीट्स थी, बहुत हाई कट ऑफ जाती है TGC की। तो उसमें ये रहता है कि बच्चे बहुत कम आते थे, 40, अराउंड 40 और 45 हो चुका था आफ्टर कोविड। दिस इज द पीरियड अराउंड, आई एम टॉकिंग अबाउट 22 to 25।
2022 टू 25। नाउ अब ऐसा हो चुका है कि अगेन इन लोग ने दो सेंटर दे दिए गए हैं और एक बोर्ड में एक ही वो रहेगी, तो अराउंड अभी जो रिपोर्टिंग चल रही है वो 200 से 250 के बीच में चल रही है। ओके। अब एसएससी टेक में मैम अर्लियर आई स्टार्टेड फ्रॉम 2020, तो कोविड का हमने टाइम देखा था। उस टाइम पे अराउंड 400 बच्चे आ जाते थे। बट फिर धीरे धीरे इस चीज को समझ में आया आर्मी वालों को भी कि बैचेस बहुत आते थे, मतलब उसमें एक बैचेस में बहुत बच्चे आते थे। तो उन्होंने बैचेस बढ़ा दिए गए हैं। अब जो बच्चे आते हैं वो 100 से अराउंड 150 और वो रह गया है। तो इस चीज में अब ये रह गया कि कंपटीशन थोड़ा कम। हाँ, बच्चे ये बच्चों के दिमाग में ये रहता ही है यार, उसमें तो बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, हम लोग स्क्रीन इन कैसे हो पाएंगे, ये चीजें रहती है। नेवी टेक में भी सेम रहता है, 100 to 150 अराउंड रहता है। एंड टीजीसी की जो वो एसएसबी आती है मैम, वो अभी फरवरी मार्च में आती है एक, एंड फिर जुलाई और अगस्त के बीच में रहती है। सेम फॉर एसएससी टेक की क्या रहती है, मई जून, एंड द सेकेंड वन केम अराउंड नवंबर दिसंबर में। एंड फॉर नेवी टेक फर्स्ट वन केम बिटवीन फरवरी मार्च, एंड द सेकेंड वन विल कम जुलाई एंड अगस्त के बीच में आती है। तो ये मैम एक ओवरऑल डिफरेंस है इन तीनों एंट्रीज में। ओके। कमल, एक और चीज, आपको टीजीसी के लिए भी आपने एसएसबी दिया है, एंड टीजीसी से परमानेंट कमीशन एंड उसका कट ऑफ भी हमेशा हाई जाता है। तो व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर थ्री ऑफ द एंट्रीज परसेंटेज वाइज? आई एम श्योर यहाँ पे कुछ ना कुछ कट ऑफ है जिसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। Yes, ma'am. Ma'am, I have given TGC 2 times, and it was the period of around 2020. तो उस टाइम पे जो कट ऑफ रहता था वो काफी कम रहता था। माई एग्रीगेट परसेंटेज इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इज 73। तो उस टाइम पे जो कट ऑफ रहता था वो 70 रहता था। अब मैम नाउडेज क्या है ना, कट ऑफ इज वेरी हाई इन टीजीसी पर्टिकुलरली। सो फॉर सिविल इट इज अराउंड 71%, एंड फॉर मिसलीनियस ब्रांच इट इज अराउंड 60। else electrical electronics mechanical and cs it is approximately 80, किसी में 83 रहेगी, किसी में 80 रहेगी। एंड लास्ट टाइम टीजीसी में 89 गई है सीएस की। सो हाँ, तो काफी ऊपर हाई कट ऑफ रह गई है। एंड सीट्स अर्लियर टीजीसी में 40 सीट्स होती थी, बट दिस टाइम अभी कुछ साल से 30 सीट्स कर दी गई हैं टीजीसी में। एंड मैम एसएससी टेक में कट ऑफ रहती है अप्रोक्सीमेटली 60% सबके लिए एक्सेप्ट सीएस ब्रांच। सीएस की 71 रहती है। एंड नेवी टेक हैज डिफरेंट, उसमें आपका ऐसा रहता है जीएस इलेक्ट्रिकल की 60 वो वेरी करती रहती है हर टाइम, वो फिक्स नहीं रहती। एंड उसमें पायलट एंट्री की थोड़े ऊपर जाएगी, हाइड्रो की एग्जीक्यूटिव जो होता है उसके लिए भी थोड़ा ऊपर जाती है प्रॉपर। ओके। ऑलराइट कमल, अभी हम थोड़ा एसएसबी को अच्छे से डिस्कस करते हैं, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द स्क्रीनिंग टेस्ट। यू हैव फेस्ड 8 स्क्रीन आउट्स, बट लेटर ऑन जितने भी आपने एसएसबी दिए हैं, आप इजीली आप उनको क्लियर कर पा रहे थे, यू वर एबल टू गेट स्क्रीनिंग। सो जो ये स्क्रीन आउट से स्क्रीनिंग का जो जर्नी है उसमें क्या चेंजेस करें? बिकॉज आई एम श्योर यहाँ पे बहुत सारा रश रहता है, फिश मार्केट हो जाता है रिपीटर बैच में, देर आर टाइम्स की बैच का बैच भी वॉश आउट हो जाते हैं। सो ऑल द प्रोसीजर ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट, क्या आपने छोटे छोटे चेंजेस करे जिसने आपको हेल्प किया स्क्रीनिंग होने के लिए? यस मैम। मैम स्टार्टिंग फ्रॉम माय फर्स्ट एसएसबी वेयर आई गॉट स्क्रीन आउट, मुझे पता नहीं था कि क्या स्टोरी बनानी है। आई वॉज इन माई माइंड कि मुझे, मैं ऑलरेडी एक प्री प्लान स्टोरी बना के गया था कि हाँ इस पे मुझे स्टोरी बनानी है। मुझे स्टोरी याद भी नहीं है, देयर वॉज अ स्मोक और समथिंग वॉज देयर, ओके। एंड आई मेड अ स्टोरी ऑन ओपन डेफिकेशंस। तो स्टिल माई फ्रेंड हु हैज स्टार्टेड द जर्नी विथ मी, ही वाज लाइक, वो मुझे अभी भी उस बारे में बोलता रहता है, तेरी पहली स्टोरी मुझे अभी भी याद है, तूने ओपन डेफिकेशन पे बनाई थी, क्या स्टोरी क्या आई थी। तो वो मेरे एक माइंडसेट मेरे को रहता था कि पहले मैं ये गलती करता था कि कुछ भी आया स्टोरी अपने घर से बना के गया हूँ और वो लिख दी है। दूसरी चीज, नो ओआर प्रैक्टिस, जो रैंडम मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, रीजनिंग मुझे जितनी आती है मैं वो प्रैक्टिस करके गया हूँ। तीसरी चीज, नरेशन वाज नॉट अप टू द मार्क। मैं कम्युनिकेशन वाज अ इम्पोर्टेंट फैक्टर, मैं बोल सकता हूँ कि अर्लियर इट वाज माय वीकनेस, नॉट वीकनेस पर्टिकुलरली, बट आई वाज नॉट प्रोफिशिएंट एट स्पीकिंग इंग्लिश। एंड वन मोर थिंग वाज देयर कि डिस्कशन में मैं आई वाज कीप साउटिंग, या तो मैं कभी चुप हो जाऊंगा बिल्कुल ही, और जब लोग सब बोल रहे तो मैं उस पर बिल्कुल ऐसा था कि मुझे भी पार्टिसिपेट करना है। तो ये मेरे इनिशियल पहली और दूसरी एसएसबी बिल्कुल सेम रही है। बट तीसरी एसएसबी वेर आई गॉट डॉक्यूमेंट आउट, तो उस पे क्या था कि मैंने पर्टिकुलरली पिक्चर देखी थी, ऑब्जर्व की, और उससे रिलेटेड बनाई। एंड आई इम्प्रूव माई नरेशन ऑल्सो देयर। तो उस टाइम पे मैं डॉक्यूमेंट आउट हो गया था जस्ट बिकॉज आई डोंट हैव अ डिग्री एट दैट टाइम। तो आई गॉट जस्ट पास इन ईयर 2020, एंड वो 21 की 7 मार्च 2021 में मैंने थर्ड एसएसबी दी थी। तो उस टाइम पे आई डोंट हैव एनी डिग्री, तो उस टाइम पे आई गॉट डॉक्यूमेंट आउट। बट फोर्थ अटेम्प्ट वो चीज
मेरे को पता था कि ये सारी चीजें अब मेरे को प्रैक्टिस करके जानी है ना। वहां से मैंने ओआर प्रैक्टिस करी, वहां से मैंने अपना नरेशन प्रैक्टिस किया, वहां से मैंने अपने डिस्कशन में कैसे पार्टिसिपेट करना है वो चीज प्रैक्टिस करी। तो मैं फोर्थ अटेम्प्ट में आई गॉट स्क्रीन इन, फिफ्थ अटेम्प्ट ऑल्सो आई गॉट स्क्रीन इन, सिक्स्थ अटेम्प्ट आई ऑल्सो गॉट स्क्रीन इन। लेकिन बट उस बीच में स्क्रीन आउट भी आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या गलती मैं करता था, सबसे पहले तो पिक्चर जो आती थी उसको ऑब्जर्व नहीं करता था। रैंडम अगर कोई पिक्चर आ रही है तो मैं उसमें कुछ भी अपनी प्री प्लान स्टोरी बना के जाता था इनिशियली। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज नहीं करनी है। अगर आपको कोई पिक्चर दिखाई जा रही है पीपीटी में, तो आप वहां पर क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व करो उसको, क्योंकि 30 सेकंड, दे हैव गिवन 30 सेकंड टू ऑब्जर्व द पिक्चर एंड 30 सेकंड टू राइट डाउन द डिटेल्स इन द बॉक्स, पर्टिकुलर बॉक्स। जो पीपीटी में एक बॉक्स आता है साइड पे, जिसमें हम एज लिखते हैं, जेंडर लिखते हैं, उनके मूड लिखते हैं एंड एक्शन लिखते हैं। तो ऑल दो 1 मिनट है आपके पास वो पिक्चर को ऑब्जर्व करके सोचने का और उस पर पिक्चर बनाने का। तो वो चीज मैं यही बोलना चाहूंगा कि उस चीज पे काम करना चाहिए हर एक इंसान को, कि पिक्चर को अच्छे से देखे और उससे रिलेटेड बनाए, आउट ऑफ द पिक्चर ना बनाए। दूसरी चीज, ओ है, आपको बहुत सारे ऐसे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, ऐसे टेलीग्राम में बहुत सारे ओआई पीडीएफ मिल जाएंगी जो ऑलरेडी प्रैक्टिस्ड है, या उस फॉर्म में दे रखी पीडीएफ फॉर्म में है, जिसको आप प्रैक्टिस करके जा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है ओआईआर इज ऑल्सो अ की फैक्टर। जो 4 टेस्ट है, दो ओआईआर, एक पीपीटीटी एंड डिस्कशन, चारों इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्क्रीनिंग। वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, क्योंकि बहुत मिसकंसेप्शन रहता है कि ओआईआर यार नहीं, इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं करता। ओआईआर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन योर पीपीटीटी और स्क्रीनिंग टेस्ट। तो ओआर हमको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, प्रॉपर एनालॉग और नॉन वर्बल, उसको प्रॉपर अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। और क्योंकि आजकल ऐसा होता है कि कुछ कुछ सेट्स ऐसे हैं एसएसबी में जिसमें आपको इजी लगते हैं, बट आपके टाइम बहुत कम होता है उसमें। आपको एसएसआर विल गिव ओनली 20 to 25 minutes एंड यू हैव टू सॉल्व अराउंड 50 क्वेश्चंस। वो लगते हैं बट वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उसको उसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए प्रॉपर। सेकंड चीज मैम, मेरी नरेशन, आई वॉज नॉट, एज आई सेड, आई वॉज नॉट प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग इंग्लिश। तो मैं अच्छे से नहीं होता था, आई गॉट फंबल इन बिटवीन, मैं बहुत फंबल हो जाता था। एंड कभी कभी मुझे ऐसा होता था क्या बोलूं करके। तो उस चीज को मैंने इम्प्रूव किया। घर में क्या करता था कि कुछ अगर जैसे स्टोरी बनाई हम लोग, वी हैड मेड अ ग्रुप ऑन द टेलीग्राम इटसेल्फ इन 2021, तो काफी मुझे उसमें ग्रुप लोग मिले थे। बट मैंने ऐसा था कि जो सीरियस लोग हैं, 50 मैंने लिए थे पीपल, बहुत सीरियस थे हम लोग, जो हम प्रैक्टिस करते थे डेली। वहां से मैंने अपने नरेशन को प्रॉपरली अपना फोकस किया कि इसको कैसे करना है। अभी क्या करता था मैं एसएसबी में, जैसी पीपीडीटी की पिक्चर लिखी मैंने, प्रॉपर एक स्टोरी लिख दी, तो मैं बिल्कुल किसी से बात बात नहीं करता था, सीधे उसको रिवाइज करने लग जाता था। क्योंकि कभी कभी क्या होता है मैम, देर इज वो आपको थोड़ा हेजिटेशन होने लग जाती है, आपको देर एंजाइटी, मैं प्रॉपर वर्ड नहीं कहूंगा एंजाइटी, बट वो लगता है, थोड़ा डर लग जाता है कि यार क्या होगा वहां पर, यार कैसे होगा। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि प्रैक्टिस करते रहो। कीप प्रैक्टिसिंग, यू हैव लाइक, कभी कभी आपको 10 मिनट मिल जाते हैं, कभी कभी आपको आधा घंटा ही मिल जाता है। तो विदाउट वेस्टिंग दैट पर्टिकुलर टाइम आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। कीप प्रैक्टिसिंग, क्यों हमको किसी से बात करनी, देर आर, आपको बहुत टाइम मिलेगा उसके बाद, आप स्क्रीन आउट हो जाओगे। उससे अच्छा तो आप स्क्रीन हो, आपको बहुत टाइम मिलेगा दूसरों से बात करने का। उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो और उसमें रिवाइज करते रहो। दूसरी चीज, डिस्कशन। डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन स्क्रीनिंग। हम क्या करते हैं कि 20 20 लोग बैठा के टेक्निकल एंट्री में प्रॉपर, या 15 बैठा के, तो अब हर एक बच्चा बोलना चाहता है, बट क्या होता है कि जब हमारा नरेशन का टाइम आता है डिस्कशन से पहले, तो हम लोग काफी टाइम पे उसमें वो बहुत लंबी लंबी स्टोरी बना वो बोलने लग जाते हैं। उस टाइम पे हमको ऐसा है कि क्रिस्प रखो स्टोरी, योर नरेशन शुड बी क्रिस्प एंड क्लियर, ताकि ऐसे सर ये ना बोल पाए नेक्स्ट करके। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बच्चे बहुत एक्सप्लेन करने लगते हैं कि गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे आई हैव, बहुत ज्यादा नहीं क्रिस्प। मतलब मेरी एक स्ट्रैटेजी रहती थी, मेरा एक स्टार्टिंग के लाइन वो बने हुए थे, या आइदर आई यूज फ्रेंड्स और जेंटलमैन। सो आई सेड फ्रेंड्स, आई परसीव 3 मेल कैरेक्टर, 2 मेल, 3 मेल कैरेक्टर ऑफ एज this all are in positive mode, the action of my story is this, अजय और एनी नेम पर्टिकुलर आई स्टार्ट एंड क्रिस्प रखो, ताकि आपके एक्शन अच्छे से आप उनको एसेसर को बता सको, और आपके 1 मिनट विद इन 1 मिनट में आपका कंप्लीट हो सके। बिकॉज बहुत बच्चे हैं, अगर 150 से 200 बच्चे आ रहे हैं, तो एसेसर के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो सुबह से शाम तक बैठे रहे। तो आप ये करो कि 1 मिनट में आपका नरेशन कंप्लीट हो जाए। दूसरी चीज, डिस्कशन। डिस्कशन में मैम 20 लोग से, क्योंकि स्टार्टिंग में सब एकदम से
अटैक करेंगे। अटेंड करेंगे, बट right. हाँ, अटैक करेंगे तो अगर आप बोल सकते हो तो तब तो वेल एंड गुड है। बट ये है कि डिस्कशन से पहले आप एक एक की स्टोरी पक्का सुनना। मैं ये बहुत गलती करता था स्टार्टिंग के उसमें, मैं स्टोरी नहीं सुनता था, बस अपनी ही नरेट करने में लगे रहता था कि मेरी ही स्टोरी अच्छी है, मेरी ही स्टोरी अच्छी है, बाकी तुम लोग ने जो बनाई है वो अच्छी नहीं है। तो उस चीज को मैं एक एक की स्टोरी सुनता था। अब जैसे मेरे को, मैंने कोई स्टोरी बनाई पर्टिकुलरली, और दो तीन ने और भी बनाई, तो मैं वैसे स्टार्ट कर देता था कि फ्रेंड्स, as chest number this has made a story on this particular thing. From the background of the picture there was particular this, so we can make a story on this. If group agree we can add action on this करके। तो उससे क्या होता है, एसेसर को दिखता है कि कॉपरेट करके चल रहा है, उसने इसकी स्टोरी भी सुनी है ना, और ऑब्जर्व भी अच्छा किया कि बैकग्राउंड में ये है। अब क्या होता है, कभी कभी बच्चे क्या होते हैं कि नहीं मानते हैं। बच्चे कहते हैं कि यार नहीं नहीं, हमारी स्टोरी अच्छी है, हमारी स्टोरी अच्छी है। तो वहां पर क्या है कि अगर नहीं मान रहे तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो उसी की, या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि दो ग्रुप बन गए, एक मेरी स्टोरी के साथ चल रहा है और एक दूसरे बच्चे की स्टोरी के साथ चल रहा है। तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं कि यार चलो लेट्स कंबाइन बोथ ऑफ द स्टोरी, हम एक स्टोरी बना सकते हैं। अगर वो नहीं मान रहा है फिर तो कोई बात नहीं, चलो अब उसी में हम एक्शन ऐड कर सकते हैं। बट डिस्कशन शुड बी लाइक नॉर्मल, एक फॉर्मल डिस्कशन होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी अ डिबेट लाइक कि चिल्ला रहे हो कंटिन्यूअस, हर कोई चिल्ला रहा है वो करके। तो इस बार क्या हुआ था मैम, मेरे स्क्रीनिंग में आई हैव गिवन 17 अटेम्प्ट, तो मैंने आज तक कभी कॉमन स्टोरी नरेट नहीं करी थी। इस बार वो भी हो गया था कि हाँ चलो कॉमन स्टोरी नरेट, एक बच्चे ने, मैं आई वाज रिलैक्स कि मैंने कहा चलो ठीक है, किसी को भी नॉमिनेट कर देंगे, एंड कैंडिडेट से चेस्ट नंबर दिस विल नरेट द स्टोरी, एवरीवन एग्री। आई वाज लाइक इन लिटरली शॉक। तो बट एक चीज मेरी ये अच्छी थी कि मैंने सबकी स्टोरी सुनी थी। वाह। मतलब दो ग्रुप बने थे तो दोनों की स्टोरी मैंने सुनी थी। तो एट द एंड ऑफ द डे, उसके जब कोई खत्म होता है तो मुझसे दो तीन बच्चे आते हैं, कहते हैं कि यार हाउ, कितने अच्छे से तूने दोनों की स्टोरी को कंपाइल करके और अपने एक्शन डाल के स्टोरी सुना दी। बट मैं थोड़ा वो डर भी लग रहा था कि यार मैं अगेन स्पिन आउट ना हो जाऊं, क्योंकि थोड़ा वो फंबल हो गया था बीच में। हाँ, कि और क्या पता एक्सेसर सोचे कि यार इसने अपने मन से थोड़ा एक्शन ऐड कर दिए हैं, तो उस चीज से भी मुझे डर लगता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक एक पर्टिकुलर टास्क को हम उठा के देखें, और एक एक टास्क वेरी इंपॉर्टेंट स्क्रीन में, तो स्क्रीन में किसी को दिक्कत नहीं आएगी इस चीज में। कमल, यहाँ पे मैं दो तीन पॉइंट्स ऐड करना चाहूंगी। पहली बात, ओआर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो फिल एज मच एज यू कैन, इंस्टेड ऑफ लास्ट के अगर वो कह रहे बंद करो या बहुत कम टाइम रह गया तो रैंडमली आप फिल कर दो, पर उसको अनअटेम्प्ट छोड़ना वो सही एक सजेशन नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। सेकेंडली, ओआर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस, बिकॉज वहाँ पे देर आर टाइम कि आई हैव सीन कि वो कम टाइम बताते हैं, पहले वो बंद कर देते हैं। तो इट्स ऑलवेज गुड कि प्रैक्टिस होगी तो आप हैंडली फटाफट उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। लाइक यू सेड ऑन नरेशन एंड रिगार्डिंग द डिस्कशन में हैव अ, जैसे आपने जो स्टार्टिंग की बात करी ना नरेशन की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे तो उससे पहले जब मैं आई यूज्ड टू गो टू एसएसबी, आई हैव सीन दैट इट हैज गिवन मी कॉन्फिडेंस, बिकॉज इतने बच्चों के सामने और सब प्रॉपर्ली सूटेड और सबके चेहरे, देयर इज सम, सब बहुत नाइसली ड्रेस होके आते हैं, तो वहां पे अपने कॉन्फिडेंस को सस्टेन करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहता है। तो इट्स ऑलवेज गुड कि जैसे आपने जो तीन चार फ्रेज जो लिखे हुए हैं उसको आप अच्छे से बोलो, तो वो आपको थोड़ा सा वो ब्रेक द आइस वाला काम करता है। एंड देन योर स्टार्ट इज गुड, देन योर स्टोरी इज डेफिनेटली गोइंग टू बी लिसन बाय एवरीवन। एंड वंस योर स्टोरी इज डन, लिसन एवरीवन स्टोरी, बिकॉज फिर आपको डिस्कशन टाइम पे जो आई कांटेक्ट या एक वो उसका बहुत इंपॉर्टेंस रह जाता है। एंड डू नॉट लुक एट एसेसर्स, दैट इज अ हाई 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 रिक्वेस्ट टू यू ऑल, बिकॉज वहां पे आपका ग्रुप के साथ इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, ना कि ये चेक करना कि एसेसर आपको नोटिस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। Have a हम्म। lively personality at that time. It's not necessary to panic. It's a group discussion. There are time, अगर वो 5 मिनट का डिस्कशन है, लेट्स सपोज कि उसमें एक दो मिनट के बाद सब बोल रहे हैं, आपको लग रहा है मौका नहीं मिल रहा है, दे विल बी अ ड्रॉप बिकॉज आप थक जाएंगे। एंड देन यू कैन ऐड हम्म। ऑन कि आई हैव हर्ड चेस्ट नंबर दिस स्टोरी एंड आई वुड लाइक टू ऐड दिस इज अ गुड पॉइंट एंड वी कैन ऐड ऑन एंड यू कैन contribute to the group. Since it's a GD, do not disagree. It's a group discussion. There's no need of disagreeing with the group. I don't agree with the chest number. Don't be a violating person. Be a constructive person in a group. And I think these factors are very little small, but I'm sure कि आपकी जब ओवरऑल एक पूरा कंपाइलेशन होता है एंड आपको जब मेरिट वो जो स्क्रीनिंग के लिए जब हमें चेस्ट नंबर बोले जाते हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स रहते हैं। कमल, जैसे आप बात कर रहे हैं, मुझे हर एक वो चीज लग रही है जो एक रिकमेंडेड कैंडिडेट में होनी चाहिए। एंड आई एम रियली वेरी शॉक्ड व्हाई इट टुक यू 17 अटेम्प्ट्स, एंड हैट्स ऑफ टू योर पेशेंस, बिकॉज आपने 17 अटेम्प्ट तक अपने अपने हार्डवर्क पे भरोसा रखा है, आप करते रहे। बिकॉज फॉर मी यू हैव डन एवरीथिंग, you have achieved a good score in your college, you are doing a job, you're doing everything, but this is a very strange thing.
I want to know it from you why it took you 17 attempts, because you have given up your best till 17th attempt. That was your last attempt, and you have got the recommendation. But why it took you so long? मैम इसके पीछे एक बहुत, अगर मैं एक वर्ड में इसको वो खत्म करना चाहूंगा तो ये रहेगा कि मिसगाइड। आई वॉज मिसगाइड। आई वॉज वेरी गुड इन साइकोलॉजी, मुझे पता नहीं था क्योंकि आई हैव अटेंडेड टू कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड देयर आई वॉज द ओनली कैंडिडेट हु गॉट पास फ्रॉम द साइकोलॉजिस्ट। तो वो चीज मुझे ऐसा लगता था, कभी डाउट आ जाता है आपको, कभी कभी सेल्फ डाउट, क्योंकि आपको नहीं पता होता। वी आर नॉट द एसेसर, स्टिल आई एम गेटिंग रिकमेंडेड, बट मुझे नहीं पता कि मैं किस चीज के लिए पर्टिकुलर, किस टास्क में मेरे ज्यादा नंबर है, किस टास्क में कम नंबर है, बिकॉज वी आर नॉट द एसेसर्स। बट जब मैं आपका असेसमेंट करवाते हो आप, तो वहां से आपको पता चलता है कि हाँ आपका इस चीज में साइकोलॉजी वॉज वेरी गुड। तो मेरा चीज मैम मिसगाइड हो गया था बीच में। मैं ऐसा होता था कि मेरे मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स गॉट रिकमेंडेड। मैं स्टार्टेड माई जर्नी 2020, तो बहुत दोस्त मेरे ऐसे हैं कि अभी स्टिल दे बिकम फील्ड मेजर्स, कैप्टन्स एंड। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार वो स्टोरी पे वो याली स्टोरी बना के आया था, मैं भी यही स्टोरी बना के आ जाऊंगा। एंड आई हैव ट्राइड दिस पर्टिकुलर थिंग। मैंने साइकोलॉजी में वो ट्राई कर रखा है। अपनी टीएटी आई थी, सेम टीएटी आई थी एक बैंगलोर के एसएसबी में, एंड उसने, मेरे दोस्त ने जो बनाया था वो मैं सेम बना के आ गया था। बट दैट डज नॉट मैच टू माई पर्सनैलिटी। स्टिल मेरी कभी कभी स्टोरी इनकम्प्लीट रह जाती थी मैम। और कभी ऐसा रहता था कि डब्ल्यू एटी छूट गए। और एसआरटी तो मैम पर्टिकुलरली 60 अटेम्प्ट करना वो उतना पॉसिबल नहीं है हर किसी के लिए, बट ठीक है। दूसरी चीज, इंटरव्यू में भी मैम कभी कभी ऐसा रहता था कि जैसे नेवी टेक में मैं जाता था, तो देर आर मेनी चांसेस कि मेरी टेक्निकल में आई वॉज नॉट एबल टू, मैं अच्छे से टेक्निकल नहीं पढ़ के गया है। एंड इवन दैट नेवी टेक में जो आयो थे, उन्होंने मेरे से ये बोला था, कमल यू आर अ वेरी गुड कैंडिडेट, गो टू आर्मी एसएसबी, यू विल डेफिनेटली गेट रिकमेंडेड फ्रॉम द आर्मी एसएसबी। तो मैंने तो उनको बोलता, सर नो, आई जस्ट वांट टू कम, मुझे नेवी में ही आना है। बट ही डायरेक्टली से इन फ्रंट ऑफ मी, कमल इफ यू वांट टू कम टू नेवी, either you just have to revise your particular technical or come with some different entry। तो Okay. वो चीज मेरी डिफरेंट करती थी। और मैं बहुत, मैं कह सकता हूँ कभी कभी कोई चीज में वर्बोज हो सकता था। मेरे से क्या पूछा जा रहा है मैं ढंग से सुन नहीं रहा हूँ स्टार्टिंग के उसमें इंटरव्यूज में। तो मैं, क्या पूछा जाता है पर्टिकुलर थिंग, और मैं क्या दे रहा हूँ आंसर। सेम फॉर द जीटी ऑल्सो, कि मैं कहूँगा थोड़ा कम नॉलेज थी विद द जीडी पार्ट, ग्रुप डिस्कशंस पार्ट, लेक्चरेट पार्ट एंड पार्टिसिपेशन। तो वो चीजें मैंने इम्प्रूव करी, और वो चीजें मेरी 17 अटेम्प्ट में मेरे को ऐसा लगा कि हाँ थोड़ा लंबी जर्नी रही है मेरी। बट ये था कि लास्ट के 2-3 अटेम्प्ट में आई वॉज ऑल्सो नॉट एबल टू डाइजेस्ट कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ, कि आई वॉज नॉट एबल टू, समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, कहाँ क्या हो रहा है। तो वो चीज मैंने अपना असेसमेंट करवाया, देन आई गॉट टू नो फ्यू थिंग्स, स्मॉल स्मॉल थिंग्स, कि हाँ इस चीज में, ये साइकोलॉजी में ये वाला पार्ट ऐड करो, छोटे छोटे एक्शंस ऐड करो। एंड तीसरा, इंटरव्यू में आप, यू आर वेरी गुड, बट आप एक फॉर्मलाइज है ना, एक फॉर्मेट में अच्छे से आंसर दो। दिस ग्रुप डिस्क, दैट जीटीओ पार्ट, यू शुड इंक्रीज योर नॉलेज। तो वो चीज मैंने ऐसा करा कि हाँ इस बार मैं उस चीज पे प्रॉपर काम करके गया था। नॉलेज वाली बात है, मैं लास्ट के 6 मंथ की करंट अफेयर प्रॉपर पढ़ के गया था, कि मुझे ऐसा था कि हाँ अब मेरे से पूछ लो जो भी पूछना है। आई वॉज एबल टू टेल एवरीथिंग। एंड इवन वो इंसिडेंट हुए भी है मेरे से, तो बहुत ऐसे कि मेरे से पूछा जाता है कि यार किस चीज को, टास्क को रिवाइज करना चाहेगा, तो मैं बोलता हूँ सर जीडी कर लूंगा। एवरीबॉडी वाज लुकिंग एट माय कॉन्फ्रेंस कि अच्छा जीडी की बात कर रहे हैं। तो वो चीज मेरे से इंसिडेंट रहे थे। बट हाँ ये चीज था कि काफी मैंने मेहनत करी थी इस अटेम्प्ट में। मुझे ये था कि आखिरी अटेम्प्ट है, सारी जान लगा देनी है इसमें, है ना। एवरीथिंग आई शुड हैव कवर्ड, आइदर टेक्निकल पार्ट हो, कुछ भी पार्ट हो, और नॉलेज ऐसे करके जाओ कि आप कहीं भी आप उसमें मात नहीं खा सकते हो। तो ये चीजें मैंने आखिरी आखिरी के जो अटेम्प्ट थे उसमें मैंने बहुत काम किया अपने पे, एंड आई गॉट रिकमेंडेड फाइनली। कमल, एक और काफी ज्यादा मिसकंसेप्शन रहता है या लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं, इज प्रिपेयरिंग विद द जॉब। यू आर ऑलरेडी डूइंग एवरीथिंग, वेदर इट्स योर हेल्पिंग एट होम टू डूइंग अ जॉब एंड देन बैक टू बैक एसएसवीज। तो वो चीज आपने कैसे मैनेज करी? व्हाट यूज्ड टू बी योर रूटीन, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर वी डिस्कस एनी ऑफ द टास्क। आई थिंक दिस इज द प्राइमरी फैक्टर आई नीड टू फोकस ऑन। मैम यहाँ पर मैं थोड़ा ब्लंट होना चाहूंगा कि जो लोग भी ये सोचते हैं कि हम लोग यार हमारी तो जॉब चलती है 9 to 5 और 9 to 6 हमारी जॉब चलती है, या हम लोग नहीं कर पाते, टाइम नहीं कर पाते। मैम मैं अपना केस बताता हूँ। देयर वाज अ ट्रेजेडी हैपन इन दिस जर्नी। आई लॉस्ट माई मदर इन ईयर 2022, and all the household responsibility came into my shoulder, and all the household chores, like me and my second elder sister, we divided both our household chores। So मैं, आई वॉज डूइंग जॉब,
I was preparing for SSB. I was going to gym. I was doing in the morning sweeping, mopping, washing utensils, what helping in my sister washing clothes, buying vegetable, buying grocery, everything, every from the market. तो मैंने ये सारी चीजें मैनेज करी। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा होता था कैसे होंगी ये चीजें। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मैं हो जाता था कि यार कैसे हो गया यार, मैं इतनी सारी चीजें कैसे एकदम से। बट आप ये सारे बहाने होते हैं। इट्स ऑल अबाउट कि यार हम नहीं कर पाएंगे, आप स्टार्ट करो, क्यों नहीं होता। आपके पास टाइम है। रिसेंटली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ माय फ्रेंड की यार मेरा ना ऑफिस होता है इतने बजे तक, उसके बाद मैं कैसे पढूं एसएसबी के लिए। तो मैंने उसको यही बोला, जितना टाइम तो इंस्टाग्राम में यूज करता है, जितना टाइम तो और सोशल मीडिया में यूज करता है, आप उससे भी यूज कर सकते हो। आप देर आर मेनी पेजेस इंस्टाग्राम में जिनको आप फॉलो करके आप करंट अफेयर, दिन की करंट अफेयर आप सोशल मीडिया से यूज कर सकते हो। ऑफिस टाइम में भी क्या होता है, लंच पीरियड में हमारा लंच ब्रेक होता है, बहुत सारे टी ब्रेक होते हैं, उसमें भी हम इंस्टाग्राम अगर खोल ही रहे हैं, तो वहां पर भी आप ऐसे पेजेस डाउनलोड करोगे जिससे यू गॉट टू नो अबाउट सम व्हाट करंटली इज गोइंग ऑन। आप करंट में क्या चल रहा है, अगर आपको नहीं देख पा रहे, आप मेट्रो में आ रहे हो, आप वाइल कमिंग विद द कैब, उस टाइम पे आप वीडियो चला सकते हो यूट्यूब की कि हाँ अभी ये हुआ है, ये पर्टिकुलर केस को हम पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज कि आपको हर चीज पे काम करना है, आपकी फिजिकल्स पे भी आपको काम करना है, आपको अपने प्रिपरेशन पे भी काम करना है। तो ये सारे बहाने होते हैं। आप 5 घंटा सो लो, 6 घंटा सो लो, क्योंकि एकेडमी में आपको 2 से 3 घंटा, मुश्किल से 4 घंटा आपको सोने को मिलेगा। तो अगर आप यहाँ से अगर आदत बना दोगे, बिकॉज जो सपना आपने देखा है उसके लिए कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये चाहे वो नींद हो, चाहे वो कुछ भी हो, थोड़ा बहुत तो आपको करना पड़ेगा। और जॉब इज ऑल्सो बिकॉज यू इट बिकम्स, इट मेक्स यू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तो उसको भी नहीं छोड़ रहा है। तो ये सारी चीजें मुझे ऐसा लगता है कि मैनेजेबल होती है, बट आपका माइंडसेट होना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट कि मुझे करके दिखाना ही है। यस। Kapil, I am feeling very proud, while talking to सो you and discussing everything with you. I mean, elsewise I'll just get deviated from the topic, but I'll talk right now with the psychological part of the SSP, because psych is very important. And like you mentioned, that there are so many minute things a person need to keep in mind while performing all these tests. So specifically starting with TAT, because TAT is something, I think, one of the great game changers for any person. TAT is very important, and you're writing a story, you have to add details, you have to have a proper observation regarding the photo which is being shown to us. What is your observation? What are your suggestion regarding TAT? Because I do feel like it's very important. yes, ma'am, TAT is my one of the favorite task in the SSB, to be honest. Okay. So, my perception regarding the TAT is already three factor. I divide TAT in three factor. When the picture comes in front of us, तो मैं तीन चीज ऑब्जर्व करता था उसमें। सबसे पहले नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कि कितने कैरेक्टर्स हैं, द Hmm. अटायर दे हैव, वो उन्होंने क्या पहन रखा है, ठीक है, एंड द बैकग्राउंड। And if a pictures, like let's take an example of a pictures in our office, there are a few candidates. They have both formals. We said 5 people are there in an office conference hall. Uh, 5 people. So there from I observed like 5 character wear formals, their attire is formals. The background is office conference hall. So I will not make a story regarding कि मैं ट्रैवलिंग करा रहा हूँ, कि उसने छुट्टी ली ऑफिस से और वो गया क्या कहते हैं ट्रैवलिंग करने अपने दोस्तों के साथ पांच। वो प्रॉपर अगर कॉन्फ्रेंस हॉल है तो उस कॉन्फ्रेंस हॉल में कुछ डिस्कशन हो रहा होगा। अब ये आपको सोचना है कि आप, दैट इज द ब्यूटी ऑफ टीएटी, Right. थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, द एपरसेप्शन पार्ट, योर परसेप्शन, आप उसको कैसे लेके जाते हो। ऑफिस में आपको क्या क्या पता है। अब जैसे मैम बहुत सारे लोग, बहुत सारे एसेसर यही बोलते हैं कि आप उसको अपने से रिलेट करो। अगर मैं अपना ऑफिस का कल्चर देखूंगा, अगर हर कोई अपना ऑफिस का कल्चर का, तो हर कोई का डिफरेंट होगा। Right. कुछ के उसमें हो सकता है सिनेरियो कि उसमें कुछ ऑफिस की मीटिंग हो रही है, एचआर की मीटिंग हो रही है, कोई नया प्रोजेक्ट आ रखा है। तो देर आर एन नंबर ऑफ थीम्स कैन बी मेड, बट इट शुड बी रिगार्डिंग वो जो पिक्चर में दिखाया गया है। इट शुड बी द होल स्टोरी शुड बी रिवॉल्व अराउंड दैट पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस हॉल एंड दैट पीपल मीटिंग कर रहे हैं वहां पर। Hmm. और उस चीज को प्रॉपर ही बनाओ। अब रही बात मैम इसमें एक्शन की, तो प्रॉपर, अब मैम जैसे मैंने, हाँ, हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट क्या होते हैं, रिटर्न कम्युनिकेशन में कहूंगा इट्स ए इंपॉर्टेंट पार्ट इन टीएटी। आप Right. उसको कैसे आप हाँ, छोटे छोटे एक्शंस को आप कैसे ऐड करते हो, बहुत ज्यादा उसको लेंदी नहीं बनाते हो, क्योंकि स्टोरी अगर आप बहुत सारे एक पर्टिकुलर एक्शन को उठा के आप बहुत बड़ा लिखोगे, ऑलरेडी इट्स 12 to 15 लाइन्स हो जाएगी, और आप प्रॉपर एक्शन नहीं डाल पाओगे। आप छोटे छोटे एक्शन डालो, कि जैसे ही डिवाइडेड, क्या होता है कि ही डिवाइडेड द टीम, गेव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, gave responsibility to the team members and monitor the प्रोग्रेस। ये एक वो हो गया पर्टिकुलर थिंग हो गया। अब मैं इसको ऐसे कहूंगा, मेरा एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है जैसे अमन, डिवाइडेड द टास्क इनटू
टू टीम्स, टीम ए विल डू दिस पर्टिकुलर, अगर मैंने बोला टीम ए विल वर्क ऑन द बैक एंड टीम, टीम बी विल वर्क ऑन द डिजाइनिंग टीम, एंड ही मॉनिटर्ड द होल प्रोग्रेस थ्रू अ पर्टिकुलर सीट्स। अब इसमें मैंने बहुत सारे एक्शंस डाल दिए, एक बैक एंड टीम का डाल दिया, एक उसमें मैंने ये डाल दिया कि पर्टिकुलर डिजाइनिंग पार्ट हो गया, और वो कैसे मैं वो कर रहा है, उनको मॉनिटर कर रहा है सीट्स के थ्रू। तो वो चीज अगर मैं और एक्शन डाल दूं, मतलब छोटे छोटे एक्शन बहुत इंपैक्ट करते हैं टीएटी में। राइट। दूसरी चीज कि आपकी जो स्टोरीज है वो रिलेट करनी चाहिए, आप आउट ऑफ द पिक्चर नहीं जा सकते उस पिक्चर में। मैम मेरे उसमें एक पिक्चर आई थी, देर वॉज मतलब एक फीमेल कैंडिडेट वॉज सिटिंग इन अ सोफा लाइक था, और एक मेल कैंडिडेट खड़ा था। तो अब वही है कि मैं खुद से रिलेट करता हूँ, मैं तो टीएटी में मैम दिस इज, तो आई ऑब्जर्व दिस एज माई एल्डर सिस्टर, सेकंड एल्डर सिस्टर, क्योंकि फर्स्ट एल्डर सिस्टर वॉज मैरिड तो वो अभी नहीं रहती, सेकंड एल्डर सिस्टर के साथ ज्यादा रहता हूँ मैं। तो वो मेरे दिमाग में था कि हाँ उसके साथ कुछ मैं एक थीम सोचता हूँ। मैम हमने बचपन से बहुत सारी चीजें कर रखी है ना, तो मेरे दिमाग में सिंपल सी ये आया कि 25th वेडिंग एनिवर्सरी ऑफ द पेरेंट्स, हम अब मैम करते ही थे, सरप्राइज करते थे पेरेंट्स को कि कैसे करते थे। मैंने प्रॉपर वही छोटे छोटे एक्शन लिखे हैं कि हम कैसे जाते थे, सुबह टेम्पल जाते थे, और उसको बुकिंग कराने के लिए प्रॉपर हमने एक रेस्टोरेंट में बुकिंग करा के डेकोरेशन कैसे करते थे। मैंने लिखा कि मैंने अपनी सिस्टर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि तू मार्केट से डेकोरेटिव सामान, क्योंकि गर्ल्स आर बीइंग यूजली गुड एट डेकोरेटिव टाइप, मैम वो उस चीज पे ज्यादा अच्छी रहती है। तो मैंने उसको प्रॉपर, मैंने उस स्टोरी में लिखा कि वो डेकोरेटिव वाला आइटम्स लेके आएगी। आई टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्डरिंग द केक, एंड रिलेटिव को इनवाइट करना सीक्रेटली, उनको ये बताना कि पेरेंट्स को मत बताया कि 20 वेडिंग एनिवर्सरी हो रही है। उसके बाद भी हम दोनों वापस आए, हम लोग उसको सजाया, उसको लास्ट में हम ले गए पेरेंट्स को, वहां ले गए पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में ले गए, वहां उनको सरप्राइज करा, उनकी आंखें बंद करके ऐसे ऐसे करके एंजॉय पर्टिकुलर थिंग। तो वो मैंने एक प्रॉपर एक इमोशन वाला उसमें फैक्टर डाला था। तो मुझे ऐसा लगता है कि टीएटी में आप जितने छोटे छोटे एक्शन आप डाल सकते हो, रेदर देन एसआरटी की फॉर्म में आप लिख रहे हो कि ही डिवाइडेड द टास्क, ही दिस, उसमें आप प्रॉपर लिखो कि कैसे डिवाइड करी उसने टास्क, कैसे उसने वो टीम को बांटा, किस टीम को कौन सा काम दिया, किस टीम ने कौन सा काम किया, उसके बाद कैसे डेली मॉनिटर करता था वो चीजें। तो वहां से मुझे लगता है कि एक जो आपकी टीएटी एवरेज चल रही है, वो आपकी एक गुड और मतलब बेटर टीएटी में फॉर्म हो जाएगी। मैं जब कमल आपकी बात सुन रही थी, मुझे दो तीन फैक्टर्स बहुत अच्छे लगे। पहली बात तो ये कि दैट यू आर मेकिंग स्टोरीज अराउंड योर एक्सपीरियंसेस, अराउंड योर पर्सनालिटी, एंड क्रेडिट सीकिंग वो चीज़ नहीं है, बट दे आर वेरी नेचुरल, एंड यू नो जो हम रोजमर्रा की लाइफ में कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में होता है, उस तरह की स्टोरीज थी। एंड योर वे ऑफ ऑब्जर्वेशन इज रियली वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू टी। आई ऑल्सो वांट टू डिस्कस WAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट. There are so many opinions which goes on, but I want to majorly discuss three kind of WAT: positive, negative, and neutral. How do you deal with these different kind of words, and आप किस तरह से उनको लिखते हैं? क्या ऑब्जेक्टिव रहता है जब कोई भी वर्ड आता है? यस मैम, व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन उस टाइम पे चैट जीपीटी नहीं आया था। हम्म। आजकल तो मैम चैट जीपीटी ऐसे आपको एन नंबर ऑफ एक्शन दे देगा, सेम विद टीएटी आपको हेल्प कर सकता है। कभी कभी हम क्या होते हैं, हमारे पास थीम होती है और हम उस पर एक्शन नहीं डाल सकते, चैट जीपीटी विल हेल्प इन टीएटी ऑल्सो कि कुछ एक्शन वो बता दे, बट थीम आप ही की है वो। तो हम्म। आई प्रेफरली मैं सबको यही बोलता था कि आप अपने नेचुरल जो आपको आ रहा है वो ही करो, एक्शन आप उसमें ऐड कर सकते हो, बट मैं यही बोलता था किसी को कॉपी मत करो। जितने स्टिल मेरे को बहुत मैसेजेस आते हैं कि आप गाइड कर दो हमें टीएटी के रिगार्डिंग या डब्ल्यूएटी के रिगार्डिंग, मैं उनको स्टिल यही बोलता हूँ। डब्ल्यूएटी में मैम उस टाइम पे चैट जीपीटी आया नहीं था, तो व्हाट आई हैव डन, आई हैव मेड अ वर्ड बैंक, मैंने बहुत सारे उसके बनाए थे। आई स्टार्टेड, जैसे आपने बोला पॉजिटिव नेगेटिव एंड न्यूट्रल वन, तो मैं क्या करता था कि मैंने अल्फाबेटिकली बनाया था कि ए से बनाऊंगा, बी से बनाऊंगा, सी से बनाऊंगा, डी से बनाऊंगा। तो वो मैं करता था। अब मैम जैसे हमने कहा पॉजिटिव सेंटेंस ले लिया, हमने कहा कि अवार्ड ले लिया। सो अवार्ड क्या होता है, बेसिकली अवार्ड आपका हार्डवर्क रिफ्लेक्ट करता है। तो मैं छोटे छोटे सेंटेंस बनाता था कि अवार्ड रिफ्लेक्ट्स हार्डवर्क, है ना, अवार्ड दैट ब्रिंग्स हैप्पीनेस, आपको खुशी देता है अवार्ड, है ना, अवार्ड रिफ्लेक्ट कंसिस्टेंसी, दैट पर्टिकुलर हार्ड वर्क में जो भी होता था। एंड अब जैसे कोई नेगेटिव वर्ड्स आ रहा है, नेगेटिव वर्ड आ गया कि मर्डर आ गया, तो मेरा ये रहता था कि यार क्या नेगेटिविटी, हम लोग बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि नेगेटिविटी कैसे हटती है, जो आपका पर्टिकुलर हॉबी है। ड्यूरिंग द फेस 2022 मेरे को मैम क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। तो मैं जो उस टाइम पे पीरियड था, हाँ इट वाज अ टफ फेस फॉर मी, तो उस टाइम पे मैं क्रिकेट खेलता था। सो सेम चीज की मैं ऐसा लगता था कि क्रिकेट मर्डर द नेगेटिविटी ऑफ द माइंड, या जो भी पर्टिकुलर आपको
दिख रहा है, आपको जो पसंद है आप वो डालो, आपकी हॉबी से रिलेटेड होना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड होना चाहिए। ये जो होल साइड टेस्ट है ये आपका पर्सनैलिटी से मैच करना चाहिए, रेदर देन आप किसी को कॉपी कर रहे हो कि उसने कहा कि यार उसने तो वो वाला WAT लिख के आया था तो मैं भी ये कॉपी कर देता हूँ। तीसरी चीज मैम आई, दैट आपने कहा कि न्यूट्रल वर्ड्स हो चुके हैं और उसमें नॉन लिविंग्स भी आते हैं, जैसे टेबल हमने मान लिया। राइट। तो टेबल से मैम अगर मैं पर्टिकुलर टेबल दूंगा, दिमाग में हमारे आता है एक टेबल आ गया, ठीक है। सो हम ये बोल सकते हैं कि टेबल डिस्कशन ब्रिंग्स क्लैरिटी लाता है, अगर हम टेबल पे बैठ के वो डिस्कस करते हैं क्लैरिटी लाता है। दूसरा, टेबल से हम क्या बना सकते हैं, टाइम टेबल बना सकते हैं। सो फॉलोइंग टाइम टेबल्स, हाँ अगर आप कोई चीज फॉलोइंग आप टाइम करते हो तो वो आपकी डिसिप्लिन इंप्रूव करता है, तो फॉलोइंग टाइम टेबल इंप्रूव डिसिप्लिन, ऐसे करके मैं वो बनाता था। एक जैसे मेरे उसमें आया था, नंबर आया था, तो मैं थोड़ा 2-3 सेकंड ले लिए मैंने कि यार क्या बनाऊं इसमें करके। तो फिर मेरे दिमाग में नंबर से मैं क्या बना सकता हूँ, नंबर रिलेटेड टू द नंबर सिस्टम। सो मैंने बनाया वैदिक मैथ्स मेक नंबर्स मोर इंटरेस्टिंग करके। तो मुझे लगा कि हाँ वैदिक मैथ्स जो होती है वो नंबर सिस्टम को या नंबर्स को बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है। अब ब्लड का आता है तो काफी स्टूडेंट क्या है कि इसमें बहुत न्यूट्रल वर्ड्स भी लिख, सेंटेंस भी लिख सकते हैं कि ब्लड ओ नेगेटिव इज अ वेरी रेयर ब्लड ग्रुप। तो ये क्या हो गया, जनरल और इंफॉर्मेटिव WAT होगी, इसमें आपको उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे। या आप ये लिख सकते हो कि ब्लड डोनेशन सेव्स लाइफ, ऐसे करके। तो मुझे ऐसा लगता है कि रेदर देन इंफॉर्मेटिंग और ये लिखने से अच्छा आप थोड़ा अच्छे फैक्चु वो WAT अगर लिखते हैं, और प्रैक्टिस, इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस कि आप कितने हैं। और आपको जितने भी ये कंटेंट है, TAT का हो या WAT का हो, ये आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। बट द थिंग इज दैट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, और आपको थोड़ा क्लैरिटी अपना सोचना पड़ेगा कि आसपास क्या है, कि हमारे आसपास में क्या चीजें है, उसको 2 मिनट बैठो। मैं तो मैम आई स्टिल रिमेम्बर द डेज वेयर आई मैं जस्ट गूगल मीट बनाता था टेलीग्राम में, एंड सब लेफ्ट कर जाते थे, मैं और मेरा एक दोस्त रहता था, हम लोग कंटिन्यूअसली एक पर्टिकुलर TAT पे, हमको नहीं आता था उस टाइम पे, इतने थॉट्स नहीं आते थे, धीरे धीरे करके आपकी क्लैरिटी, जब आपका दिमाग खुलने लगता है और आप अपने जस्ट रिलेट करते हो, जब आप रिलेट करने लग जाते हो तो आपको क्लैरिटी खुल जाती है। तो हम लोग 15 मिनट लेते थे, 20 मिनट लेते थे, आधा घंटा लेते थे, तो प्रॉपर हम लोग उस टाइम को मैनेज करते थे। फिर हाँ, तो कोई भी चीज अगर आप TAT कर रहे हो या WAT कर रहे हो, बैठ के करो, आराम से उसको टाइम दो, उसके बाद करो, तो आपका धीरे धीरे करके वो आने लगेगा, क्लैरिटी खुलने लगेगी उसमें WAT में भी। आई मीन यू हैव एडेड ऑल दी पॉइंट्स, एंड जैसे आपने ब्लड का किया, टेबल का किया, मैंने एक बार वॉर का भी था, तो एक किसी ने वॉर क्राई के साथ उसका बनाया, हाँ तो आई हैव सीन दैट इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उसको उसी वर्ड के एस्पेक्ट में लेके जाओ, बट बहुत सारे तरीके होते हैं आप उस वर्ड को यूज कर सकते हैं। एंड अभी मेरे को मजा आ रहा है तो कवर, अभी मैं एसआरटी भी डिस्कस करना चाहूंगी। एसआरटी समथिंग रिएक्शन देखा जाता है, तो आई जस्ट वांट, अगर हम कुछ एग्जांपल्स के साथ समझ पाए कि आप अपनी एसआरटीज कैसे लिखते थे, एंड टू डिस्क्लेमर टू द ऑडियंस, यू कैन अंडरस्टैंड द वे ही इज राइटिंग, यू कैन टेक इंस्पिरेशन, but please do not copy. Please do according to your own personality and everything. This is just for the understanding how a person has improved over a period of time and how he has written it. So Kamal, what about SRE? मैम सेम थिंग आई वुड लाइक टू रिपीट दैट, डू नॉट कॉपी मी और डू नॉट कि मेरे को ये TAT ने बता दी तो मैं यही लिख के आऊंगा और इससे रिकमेंड हो जाऊंगा। इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी, आपको जो सही लगता है, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो दिखाओ आप। तो जैसे SRT की बात है मैम, पहले मैं बहुत छोटी छोटी SRT लिख के आ जाता था कि जैसे एक आई कि लैब में चोरी हुई है और आपके ऊपर नाम आ गया, तो मैं लिखता था कि ही क्लियर द मिसअंडरस्टैंडिंग, एंड वो बस इतना लिख के आया था, ही मेट द लैब असिस्टेंट एंड क्लियर द मिसअंडरस्टैंडिंग। अब मेरा क्या व्यू हो गया कि ही मेट द लैब असिस्टेंट, टोल्ड हिम दैट एट द टाइम ही वाज नॉट देयर, एंड चेक द CCTV फुटेज एंड क्लियर द मिसअंडरस्टैंडिंग। अब हमारे पास अगर वो लैब उसमें कोई चोरी हुई है, तो या तो लैब में पर्टिकुलर CCTV कैमरा होंगे और उसको आप ये बता सकते हो कि उस टाइम पे आप वहां प्रेजेंट नहीं थे, तो उससे आपको बताना पड़ेगा कि आपने जो मिसअंडरस्टैंडिंग वो करी है, क्लियर कैसे करी है। हाँ ठीक है, SRT को छोटा लिखना पड़ता है, बट देयर आर सम SRT जिसमें आपको लिखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्टिव होना पड़ेगा कि हाँ यार ये चीज हमने ऐसे सॉल्व करी। अब एक SRT में मुझे याद आती है, मेरे उसमें आई माइट बी रॉन्ग, तो डू नॉट कॉपी दैट पर्टिकुलर थिंग। मेरे उसमें था कि टेररिस्ट हैज, आपको गन पॉइंट पे रख रखा है टेररिस्ट ने, व्हाट विल यू डू, बस इतनी थी कि आपको गन पॉइंट में रख रखा है। तो एट द टाइम मैं इस अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ, तो आई रोट कि हाँ ठीक है, ही वांटेड टू ज्वाइन यू, उसकी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाहता है। तो मैंने लिख दिया कि ठीक है, आई विल ज्वाइन, टेक मड, आंख में फेंका, काउंटर से गन छीनी एंड एनकाउंटर देम।
मेरे दोस्त लोग ने नहीं लिखा है, जो बाकी थे उनने लिखा था कि हाँ वो पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। आई सेड अगर टेररिस्ट है तो मैं मार के आऊंगा। तो मेरा क्लियर था, और आई वाज थिंकिंग कि मेरे से कॉन्फ्रेंस में कुछ तो ब्रेवरी वाला, एक्स्ट्रा ब्रेवरी जो मैं दिखा के आया हूँ वो पक्का पूछेंगे, बट वो नहीं पूछा गया था। बट ये मेरा था, ये मेरा पीओवी है। तो मैं यही चाहना चाहूंगा कि एसआरटी को देखो, एसआरटी में बहुत कम टाइम होता है क्योंकि हमको पढ़ना भी पड़ता है। 15 वो 30 मिनट्स आर देयर, ठीक है, एंड 60 एसआरटी आर देयर। तो हार्डली हम लोग को 30 सेकेंड फॉर एक उसके लिए मिल रहा है, एसआरटी के लिए मिल रहा है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप फटाफट उस चीज को, एसआरटी को पढ़ो। अगर आपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रखी है, जैसे स्पोर्ट्स वाली आती है काफी, कि आप यूर आपको स्पोर्ट्स कैप्टन बना दिया, आप क्या करोगे? या आपका कोई प्लेयर इंजर्ड है तो उसके और आपको एक वैकेंसी चाहिए तो आप क्या करोगे? अगर प्लेयर कोई इंजर्ड है तो दूसरा प्लेयर को उसको वार्म अप कराएंगे। हम लोग क्लियरिटी रखनी चाहिए कि हर किसी को वार्म अप कराना है, उसके साथ वार्म अप कराएंगे उसको। उसके साथ जो हमने स्ट्रैटेजी डिस्कस करी है उसके साथ भी हम डिस्कस करेंगे कि हम ये फर्स्ट हाफ में ऐसे खेलने वाले हैं, सेकंड हाफ में हम ऐसे खेलने वाले हैं। तीसरी चीज उसको साथ लेके चलेंगे, है ना। और वो सारी चीजें अगर जो भी एसेंशियल हमको दिख रही है, अगर वो नहीं परफॉर्म कर रहा है, हमारे पास और प्लेयर भी है, हम लोग सेकंड उसको रेस्ट कराएंगे, प्रॉपर रेस्ट कराएंगे। और जो दूसरा पर्सन है उसको भी हम लोग मेडिसिन वगैरह जो भी है रिक्वायरमेंट, जैसे कभी कभी आता है कि एक एंकल ट्विस्ट हो गया, हल्का सा माइनर एंकल ट्विस्ट, माइनर भी लिखा रहता है, पर्टिकुलर एक वर्ड भी लिखा रहता है माइनर। तो हम क्या करें, स्प्रे मार देंगे और बैंडेज लगा के थोड़ा रेस्ट लेके, जैसे फुटबॉल का गेम होता है 90 मिनट्स का गेम है अगर, तो उसमें हम 5-10 मिनट तो रेस्ट कर ही सकते हैं, हम्म। और उसके बाद हम खेलने जा सकते हैं। तो पर्टिकुलर ये है कि आपको, अगर आपने खेला है तो आप अच्छे से ये कर सकते हो। बट डू नॉट, ये नहीं कि बहुत सुपरस्टिशियस लिख दिया कि नहीं, जैसे उसके उसमें बहुत, अगर जैसे आ रहा है इंजर्ड हो गया है या ब्लड, सर से ब्लड आ रहा है, पेड़ से नीचे गिर गया, तो वहां ये नहीं लिखना है कि हाँ उसने पट्टी बांधी वो चल गया। या मैम एक और एसआईटी मुझे याद आ रही है कि आप और आपकी गर्लफ्रेंड जा रहे थे एंड सम उनने गन पॉइंट में ऐसे ऐसे करके, या कुछ वेपन्स वगैरह थे उनके पास, रुक दिया। तो मुझे नहीं लगता कि वहां पर आप ब्रेवरी दिखा रहे हो कि हाँ बिल्कुल मैं सबको मार दूंगा, है ना। कि उसमें प्रॉपर लिखा है 7 to 8 मैंस है। तो वहां पर आपको क्या करना है कि वहां से आपको निकलने की कोशिश करनी है। उसके बाद आप उनकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो पुलिस को, आप उनका स्केच वगैरह जो भी है आप उनकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो कि हाँ उसने ये पर्टिकुलर ये पहना था, या उसके हाथ में ये टैटू था, हाथ में उसने रिस्ट पहनी थी। तो जो भी आपके माइंड में आ रहा है उस टाइम पर आपको वहां से निकलना है। देर इज सम एसआरटी की जिसमें दिखा है कि यार स्नेक इज फ्रंट, आपके सामने जा रहा है, तो अगर वो आपके सामने जा रहा है, लेट हिम गो, लेट इट गो। वो जा रहा है तो चुपचाप जाने दो उसको, क्यों हमको छेड़ना है बेसिकली, है ना। तो ये सारी चीजें मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग को इस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए, और डे टू डे लाइफ में हमारे जो हो रही है उस चीज से हमको ज्यादा रिलेट करके लिखनी चाहिए। कमल, आई हैव टू से आपका एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत जेनरिक है। मैं आई मीन हर तरह का जो बच्चा है, हर तरह का जो कैंडिडेट है वो रिलेट कर सकता है, वो समझ सकता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम पर्सनल इंटरव्यू को काफी डिटेल में डिस्कस करें। आई थिंक दैट इज वन ऑफ माई इंपॉर्टेंट एरियाज। सो व्हेन इट कम्स टू पर्सनल इंटरव्यू, आई रियली वांट टू नो इन योर 9 at conferences where you have already faced personal interview, what kind of experiences you had and what was so special in this recommendation one? मैम मैं स्टार्ट करूंगा स्पेशल रिकमेंडेशन के दिस अटेम्प्ट से स्टार्ट करता हूँ। सो बिफोर गोइंग टू एसएसबी, आई जस्ट प्रे टू गॉड कि इफ डेस्टिनी इज रिटन, मैं मांगना छोड़ दिया था, इफ डेस्टिनी इज रिटन डेफिनेटली आई एम गोना रिकमेंड इन दिस अटेम्प्ट। एंड इफ डेस्टिनी इज रिकॉर्ड, गॉड हैज रिटन समथिंग एल्स। तो मैं, मेरा ये था कि मैंने पैनिक करना छोड़ दिया था। अगर मैं एक वर्ड बोलूं कि एक पर्टिकुलर वर्ड से मैं जो रिकमेंड हुआ, वो मैं पैनिक करता था पहले, अब वो मैंने पैनिक करना छोड़ दिया है। तो मुझे ये था कि हाँ अगर मैंने अपनी प्रिपरेशन जिस लेवल की करी है, उस लेवल की मुझे ऐसा लगता है कि घर से निकलने से पहले कि मैं रिकमेंड हो जाऊंगा। तो इस अटेम्प्ट से पहले मुझे ये था कि आई जस्ट वांटेड टू शो द एसएसएस एंड एवरीबॉडी दैट व्हाट कमल उप्रेती इज एंड व्हाट कमल उप्रेती कैन डू। सो पर्टिकुलरली मैम इंटरव्यू में ये था, पहले के जो कॉन्फ्रेंस आउट हुए थे उसमें जो मिस्टेक मैं करके आता था स्टार्टिंग के फेसेस में, मैम ये रहता था मेरा कि मैं कुछ भी बोल देता था, कि मुझे पता ही नहीं। मेरे स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस और फर्स्ट इंटरव्यू आई हैव गिवन टू नेवल आईओ। आई वॉज, आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग, वो क्या पूछ रहे हैं सर और क्या मैं जवाब दे रहा हूँ। तो अगर मैं उस पर काम करता, सेकंड ऐसा रहा कि फिर ऐसा रहा, सेकंड मेरी जो कॉन्फ्रेंस थी इट वाज वेरी गुड कॉन्फ्रेंस। एंड इवन आई सेड टू माय आईओ, उनने मेरे से पूछा था, स्टिल रिमेंबर, कि व्हाट आर योर वीकनेसेस कमल, जाते जाते। तो आई सेड सर आई वाज नॉट प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम इम्प्रूविंग दैट। तो उन्होंने मेरे से बोला नहीं यार सही है, जितनी फौज को चाहिए इतनी ही है तेरी। तो स्टिल रिमेंबर कि अगर आप फ्रीली देते हो विदाउट एनी कि यार क्या हो रहा है, घबरा रहे हैं, तो वो चीजें माइंड में रहती है। प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
बीच में प्रिपरेशन नहीं रहती थी मेरी, थोड़ी झूठे नहीं बोलूंगा कि कभी किसी टेक्निकल पार्ट मेरा नेवी टेक में, अगर मैं टेक्निकल नहीं ढंग से पढ़ के जा रहा हूँ, या मैं किसी चीज में पर्टिकुलरली अगर करंट अफेयर पूछा या कोई भी ऐसा टॉपिक पूछा उसमें फंबल हो जा रहा हूँ, या कुछ भी मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, या मैं कुछ भी बोलने लग जाता था, तो वो चीज मैंने इम्प्रूव करी इस अटेम्प्ट में कि ये चीज नहीं करनी है। अगर किसी को भी आंसर नहीं आ रहा है तो देर इज नो राइट और रॉन्ग, आपका ये है कि अगर नहीं आ रहा आप बोलिए सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, अगर आपको याद नहीं आ रहा, नॉट एबल टू रिकॉल, नहीं आता, सॉरी सर आई डोंट नो। हम्म। ये चीज मुझे एक और एसेसर ने मेरे को बताई थी कि कमल अगर ये तू बोल देगा 12 बार भी तू अगर मेरे को नो बोलेगा मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट तू एक बार भी अगर ब्लफ करेगा या ब्लंट करेगा या झूठ बोलने की कोशिश करेगा तो हम्म। वहां मैं मतलब तेरे को नहीं पास करूंगा। तो ये चीज नहीं करनी चाहिए। अब इंटरव्यू की मैम प्रिपरेशन की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले एक कैंडिडेट अगर प्रिपेयर कर रहा है तो सबसे पहले उसको एक पीआईक्यू डाउनलोड करना चाहिए। अगर वो फ्रेशर है या कोई भी रिपीटर भी है तो सबसे पहले उसको एक पीआईक्यू डाउनलोड करना चाहिए। उसमें आप ऑनेस्टी से लिखो आपने कौन सा स्पोर्ट्स लिखा है, कौन सा स्पोर्ट्स नहीं खेला है। ये बहुत मेजर वो रहता है बच्चों का कि यार हमने तो ये स्पोर्ट्स खेला ही नहीं है कभी, नेशनल स्टेट। दे आर नॉट आस्किंग अबाउट कि आपने स्टेट चैंपियनशिप खेली है, नेशनल चैंपियनशिप खेली है, कुछ भी खेला है। आपने घर में भी तो गली में क्रिकेट खेल सकते हो, आप कुछ भी खेल सकते हो। दे वर जस्ट आस्किंग यू फ्यू क्वेश्चंस। अगर आपने क्रिकेट लिख रहे हो वो आपसे क्रिकेट के ऊपर क्वेश्चंस पूछेंगे, अगर आप फुटबॉल लिख रहे हो फुटबॉल के ऊपर क्वेश्चंस पूछेंगे, बेसिक साइंस पूछ सकते हैं कि मैग्नस इफेक्ट क्या होता है फुटबॉल में, क्रिकेट में फील्ड साइज क्या होता है और कितना रहता है, अगर ये दो तीन चीजें पूछेंगे, मतलब इतना कुछ है नहीं। तो इस चीज के बारे में आप ज्यादा मत सोचो, आपकी जो पर्सनैलिटी है आप वो लिख के आओ, आप जो खेलते हो, आपकी जो हॉबी है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, मैं बहुत देख लिया मैम तो उसमें क्या लिख देते हैं हॉबीज में कि बुक रीडिंग लिख देते हैं या कुछ भी लिख देते हैं। इस बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, कमल डोंट यू रीड एनी बुक, तो आई सेड नो सर, कभी तो पढ़ी तो होगी एनी बुक। मैंने कहा यस सर आई हैव read विच बुक, मैंने कहा सर हैरी पॉटर, ही वाज लाफिंग तो आई सेड सो हु इज द ऑथर, आई सेड सर जेके रॉलिंग, सो वेयर डिड ही लिव, मैंने कहा सर सी लिव्ड इन सी इज फ्रॉम यूके, ही आस्क्ड मी वेयर ही बेसिकली फ्रॉम, सो आई सेड सर सी इज फ्रॉम यूके यूनाइटेड किंगडम, तो आर यू श्योर ही दैट ही इज सी इज अ फीमेल, मैंने कहा यस सर डेफिनेटली। तो अगर मैंने बुक नहीं पढ़ी है तो मैं वहां ब्लफ नहीं मार सकता कि मैंने यस सर मैंने ये वाली बुक पढ़ रखी है द सबकॉन्शियस ऑफ योर माइंड या जो भी ब्ला ब्ला ब्ला, मैंने खरीदी भी थी मैम द सबकॉन्शियस ऑफ योर माइंड, बट मैंने नहीं पढ़ी, तो मैं क्यों उसको बोलूं कि मैंने पढ़ी है। तो सबसे पहले आप पीआईक्यू डाउनलोड करो, उस पर आपका जो जो आपने लिख रखा है, अगर आपकी परसेंटेज कम है तो उसका रीजन होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है इंटरव्यू में अगर आपका वाई बहुत स्ट्रांग है, दैट रीजनिंग एबिलिटी, कि आपके पीछे रीजन बिहाइंड दिस पर्टिकुलर थिंग, अगर वो आपका बहुत स्ट्रांग है और जेन्युइन है, ऑनेस्टी, तो राइट। डेफिनेटली आप इंटरव्यू में एक्सेल कर सकते हो। दूसरी चीज, आपने पीआईक्यू डाउनलोड कर लिया, सीआईक्यू होते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू क्वेश्चनर होते हैं, सेट ऑफ जिनको हम रैपिड फायर भी कहते हैं। राइट। आपको इंटरनेट में मिल जाएंगे, आप उनको नोट डाउन करो, उनके बारे में पढ़ो और उनके बारे में आंसर प्रिपेयर करो इन अ एक साथ के फॉर्म में। जैसे आपने रिकॉर्ड कर लिया कि यार ओके कमल, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस 10th 11th आई वुड लाइक टू नो योर एजुकेशन बैकग्राउंड, देयर आई वुड लाइक टू से दैट which co-curricular activities sports you have participated, which teacher you like, so ये सारी चीजें आप रिकॉर्ड कर लो अपने फोन में। उसके बाद आप उसको पॉज वो करके रिकॉर्ड करके सेव करो, चलाओ, सारे क्वेश्चन होते हैं, आंसर देना स्टार्ट करो। तो यहाँ से क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, यहाँ से आपकी प्रैक्टिस होगी, बिकॉज एक रिपीटर जो होता है उससे ये उम्मीद की जाती है जो सीआई की हो वो ढंग से, क्योंकि उसने ऑलरेडी गिवन दे चुका है इंटरव्यू, तो वो चीज आप उस चीज को प्रिपेयर करके जाओ अच्छे से। दूसरी चीज, आपकी आर्मी की बेस नॉलेज है, नेवी की बेस नॉलेज है। मुझे नहीं लगता मैम जितने बच्चे मैं आजकल देख रहा हूँ वो इतनी नॉलेज लेके जाते हैं, पर्टिकुलरली आर्मी और नेवी की। आई हैव मेड 45 पेजेस ऑफ नोट्स ऑफ नेवी, मैंने नेवी के 45 पेज के नोट्स बनाए थे जब मैं प्रिपेयर करता था। स्टिल मेरे एक जूनियर था, उसने बोला कि मेरी एसएसबी है भैया, तो मैंने कहा कि पढ़ लिया, तो कह रहा हाँ मैंने सब पढ़ लिया। आई जस्ट आस्क सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज अ नॉट, कि हम नॉटिकल माइल्स में क्यों मेजर करते हैं, व्हाट आर द नॉट्स, हम नॉट्स क्यों बांटते थे पहले से उसको मेजर करने के लिए। आई सेड चल ठीक है, मुझे पॉजिटिव बियोन्सी और नेगेटिव बियोन्सी में डिफरेंस बता दे या न्यूट्रल बियोन्सी में बता दे। तो ही वॉज नॉट एबल टू, तो मुझे ऐसा लगा कि यार जो चीज अपने हाथ में है वो चीज हमको प्रिपेयर करके जानी चाहिए, उस चीज में हम कर सकते हैं। सामने सर जो है वो कुछ भी पूछ सकते हैं, वो
दैट इज नॉट फिक्स्ड, बट जो चीज हमको पता है कि हम लोग ये चीज पढ़ के जा सकते हैं, ऑल थिंग्स आर अवेलेबल इन द विकिपीडिया। नेवी के नोट्स निकालने हैं आपको, नेवी की वेबसाइट जाओ, उसमें आपको सारी नोट्स मिल जाएंगे, विकिपीडिया में आपको सब चीज मिल जाएगा। बट बच्चे ये चीज गलती करते हैं, जो मैंने भी करी है। दूसरी चीज करंट अफेयर के ऊपर, फिर आती है करंट अफेयर। चार मेजर फैक्टर है जो इंटरव्यू में, चार चीजें पूछी जाती है ज्यादा से ज्यादा। करंट अफेयर बच्चा नहीं पढ़ के जाता, उस चीज के बारे में पढ़ के जाओ। दीज ऑल आर है कि जिससे आप पढ़ के जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दिस इज नॉट अ टेस्ट ऑफ कि हाँ ये हम पढ़ के गए तो ये हम पास हो जाएंगे। टेस्ट, द इंटरव्यू इज ऑल अबाउट द टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, टेस्ट ऑफ योर ऑनेस्टी, आप कितने ऑनेस्ट हो और आपकी पर्सनैलिटी कैसे है इससे। बट ये क्या होता है कि अगर हम ये सारी चीजें पढ़ के जाते हैं तो हमारा खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारा जो आई कांटेक्ट होगा अच्छा होगा, हमारा जो पब्लिक स्पीकिंग होगी वहां पर जो कम्युनिकेशन होगा वो अच्छा होगा। तो ये सारी चीजें हमारा एक लास्ट में हमारा एक इंटरव्यू अच्छा जाता है। तो ये सारी चीजें मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें फैक्टर हमें ध्यान देना चाहिए इंटरव्यू में। एग्जैक्टली कमल, बिकॉज कंपटीशन आज के टाइम पे काफी ज्यादा है, अवेयरनेस फैक्टर सब हर किसी को है। कोचिंग एकेडमीज है तो कहीं ना कहीं एक तरह का क्या प्रोसेस है उसको लेके भी काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग सबको है। सो आई हैव डन अ रीसेंट पॉडकास्ट विद द प्रेसिडेंट एंड ही मेंशन्ड दिस थिंग, ब्रिंग एक्स्ट्रा टू द टेबल, व्हाट एक्स्ट्रा यू हैव, व्हाट एक्स्ट्रा थिंग्स यू आर डूइंग, बिकॉज एट लास्ट दे वांट अ पर्सन हु इज गुड इन नॉलेज। क्योंकि ऑफिसर और डेफिनेटली जो एक जवान जाता है उसमें एक बहुत मेजर डिफरेंस रहता है कि दे आर वेल अंडरस्टूड अबाउट द सिचुएशन, अबाउट द इन्वायरमेंट, अबाउट द नेबरिंग कंट्रीज से उनका नॉलेज बहुत स्ट्रांग है, उनको अवेयरनेस है हर चीज की। सिंपल से सिंपल, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, आपको हर चीज को लेके एक क्यूरियोसिटी हमेशा रहनी चाहिए। और जिस सर्विस के लिए आप जा रहे हो उसको लेके तो आप जितना जाने उतना ज्यादा अच्छा है। एक तो आपका उसको लेके बहुत क्लैरिटी रहेगा कि आप किस तरह की जॉब आगे जाके करने वाले हैं। एंड दूसरा, इफ यू आर सो कीन दैट यू आर सेइंग दैट इट्स योर ड्रीम दैट यू वांट टू ज्वाइन, इट शुड बी सीन ऑल्सो थ्रू योर वर्ड्स दैट यू आर शेयरिंग एंड किस तरह से आप चीजें कर रहे हो। और आप हर अटेम्प्ट के साथ अगर इंप्रूवमेंट नहीं लेके आ रहे हो तो दैट इज समथिंग यू नीड टू टेक अ मोमेंट एंड यू नीड टू थिंक कि आपका किस रीजन से नहीं हो रहा है। आई हैव सीन कमल, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु गो टू डिफरेंट पीपल, डिफरेंट रिकमेंडेड कैंडिडेट्स कि भाई कैसे आपका हुआ, इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग देमसेल्फ 2 days एंड सिटिंग एंड थिंकिंग कि भाई मुझे कहाँ काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कई बार खुद के साथ एक पेन पेपर लेके बैठना एक बहुत अच्छा सजेशन है कि आप बैठो और उसको समझो। कमल, इतने सारे अटेम्प्ट्स जो आपने दिए, कभी ऐसा हुआ कि कुछ इंटरेस्टिंग सिचुएशन आपसे इंटरव्यू के टाइम पे पूछी गई हो और यू नो दैट हैज बीन देयर इन योर हेड कि दिस इज अ वेरी यूनिक थिंग एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन द पर्सनल इंटरव्यू? यस मैम, वैसे एक काफी इंटरेस्टिंग पूछा गया था। मेरी सेकंड कॉन्फ्रेंस थी और इस वाली कॉन्फ्रेंस में भी पूछा गया था, कॉन्फ्रेंस सॉरी इंटरव्यू में पूछा गया था। सो मेरा जो सेकंड वो थी कॉन्फ्रेंस, जो सेकंड मेरा इन हुआ था, स्क्रीन हुआ था, उसमें मेरे से इंटरव्यू अफसर आज, कमल डू यू हैव एनी गर्लफ्रेंड? सो आई सेड नो सर। सो कहता है तो वाई? मैंने बोला सर आई एम राइट नाउ फोकस ऑन माई पर्टिकुलर एम एंड नॉट हैव द टाइम टू डू, मतलब ऐसे मैंने कुछ बोला था कि मेरे को प्रॉपर फोकस करना है इस चीज में। तो कहता है यार तो मतलब ऐसा है कि तुम फोकस नहीं कर पाओगे? तो मैंने कहा नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है, बट पर्टिकुलर मेरा ये है कि एम मेरा ये पर्टिकुलर ये है, तो मैं इस पे करना चाहता हूँ। सो ठीक है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट कि मतलब क्यों नहीं हुआ करके? तो मैंने बोला कि सर आई जस्ट वांटेड टू डू एवरीथिंग विदाउट नेचुरल। तो कहता व्हाट नेचुरल? मैंने कहा सर लव एंड अदर थिंग्स। कह रहा कमल आई एम आस्किंग अबाउट गर्ल फ्रेंड्स। सो ही वाज लाइक प्लेइंग विथ मी। So, मैंने कहा oh sir you are asking about girlfriends sir, for that reason I have many girls in my friend list, so I have many girlfriends. He was laughing and एक और क्वेश्चन ये आया था कि he was say what is the notorious thing you have done in your life along with your friends? तो आई वॉज लाइक कि सर एक बार हम क्रिकेट, एज आई टोल्ड यू अबाउट दैट आई प्ले क्रिकेट, तो मैं एक बार हम इट वॉज वेरी हैवी, मतलब समर टाइम, 40 approximately the temperature was there, and while coming back from playing the cricket, so we have a that river in our city, particular Gola river. So जब हम आ रहे थे वहां से तो वी हमने सोचा चलो नहाते हैं करके। तो so at that time there was no person was there, so we said that चलो आज हम विदाउट अंडरवेयर नहा लेते हैं करके। तो ही वाज, किसी ने देखा तो नो 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 सर। सो ही वाज लाफिंग इन दैट पर्टिकुलर थिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जॉयफुल पर्सन हो तो आप दिखाओ वहां पर इंटरव्यू में, बिकॉज दैट 20 अप्रोक्सीमेटली इंटरव्यू चलता है आपका 25 to 1 hour, और 1 hour से अब भी चल सकता है। तो वो इतने छोटे पीरियड ऑफ टाइम में आप कैसे अपनी पर्सनैलिटी दिखा सकते हो? तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग को वहां पर पर्टिकुलर दिखाना पड़ेगा कि हम ऐसे पर्सन है सर, हमारी ये पर्टिकुलर थिंग है। अभी एक क्वेश्चन इस इंटरव्यू में मेरे से पूछा गया था कि
tell me three qualities your second elder sister will tell about you. So I said, so first one is that consistent toward his goal and his fitness. Second thing is always ready to help people at any point in time. एंड तीसरा मैम, ये तो चलो ठीक है, ये दो चीजें तो ऐसा होता है कि बहुत सारे प्रिपेयर भी कर लेते हैं आप वो। तीसरी चीज मेरी रैंडम निकली थी और वो ऑनेस्टी से निकली। समटाइम्स ही विल से कि ही इरिटेट्स मी, सो ही लाफ्ड कि अच्छा ये इरिटेट। तो या यूजली बोथ ब्रदर एंड सिस्टर इरिटेट ईच अदर, सो ही वाज सेइंग दैट। बट मेरे इंटरव्यू में ये था कि एक इंटरव्यू ऑफिसर बैठे थे और एक और मेरे बगल में ही वाज देयर, मतलब टू पर्सन वाज देयर जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। कि 40 to 45 मिनट्स जो मेरे सामने बैठे थे, देन अगेन 15 to 20 मिनट्स जो साइड में बैठे थे, तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। ओके। सिंस इट वाज अ टेक्निकल एंट्री, कमल कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस भी आपसे पूछे गए इस अटेम्प्ट में? यस मैम, मतलब एवरी अटेम्प्ट, अगर मैं नेवी टेक की बात करूँ तो उसमें प्रॉपर आपके टेक्निकल चलता है अच्छा खासा। 20 to 25 मिनट्स आपका प्रॉपर टेक्निकल चलेगा। इस अटेम्प्ट में ही मेरे से ये पूछा गया था अबाउट द ऑप्टिकल फाइबर केबल। सो ही आस्क्ड मी अबाउट दैट, व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर केबल, कैसे वो जाता है। एंड ही आस्क्ड मी कि हम लोग फर्स्ट ही सेड कि ये जो हम वायर अंडरग्राउंड, बट मुझे वो पता था कि सी वेव्स के थ्रू वायर्स जाती है हम लोग। फिर ही सेड, immediately he changed the question, Kamal, how do we communicate between India and Dubai? So I said through optical fiber cable. So कह रहे यार ऑप्टिकल फाइबर कहाँ पर बिछी होगी? मैंने कहा सर, these cables are laid under the seas, that particular oceans. So whenever हमारे पास, मैंने उनको प्रॉपर ये बताया था कि हमारा स्टेशन जो हमारा मोबाइल होता है वहां से वायरलेस जाता है थ्रू आवर बेस स्टेशन, देन इट ऑल द होल कम्युनिकेशन इज वायर्ड, तो वो वायर्ड के थ्रू जाता है करके। सो ही सेड अबाउट दैट कि ओके ओके। देन ही आस्क्ड मी अबाउट दैट ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशंस के वो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बताओ ओवर द अदर कम्युनिकेशंस। तो वहां पर मैंने वो चीज पर्टिकुलर बताई थी। तो ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया था एंड कॉन्फ्रेंस में अलग टेक्निकल पूछा गया था मेरे से। The reason of asking this question is only that technical information is also important apart from all the things that you know about yourself. Like you mentioned couple of questions, तो मुझे बस यही था कि एक बार मैं थोड़ा सा टेक्निकल के राउंड पे हम बातचीत कर सके। कमल, लेट्स टॉक अबाउट जीटीओ। जीटीओ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा enjoyment फैक्टर बढ़ जाता है बिकॉज इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग और टॉकिंग, नाउ you can act also, you have certain tasks to do. Any 2 to 3 tasks you want to highlight according to you that are primarily very important and you have seen people committing certain mistakes that you want to highlight? Yes, ma'am. Ma'am, the moment GTO task came, we all get excited कि हाँ चलो आउटडोर टास्क है, बट Right. पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि जीटीओ जो होते हैं सर, वो सबसे ज्यादा फेल करते हैं कैंडिडेट को, बिकॉज आपकी ग्राउंड में रियलिटी दिख रही है। आप इंटरव्यू में आप अच्छा बोल सकते हो, आप साइकोलॉजिस्ट में भी अच्छी स्टोरी लिख सकते हो, बट जो आपकी पर्सनैलिटी है वो प्रॉपर निखर के आती है जीटीओ में। आप कैसे बिहेव करते हो अपने साथ वालों के साथ। तो जो जीटीओ के होल टास्क, 9 के 9 टास्क बनाए, वो बहुत अच्छे से बना रखे हैं जिससे आपके पूरी पर्सनैलिटी बाहर आ सकती है। 3 से 4 टास्क मैम मैं अगर हाईलाइट करना चाहूंगा तो सबसे पहले जीडी। जीडी इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क जो लोग स्किप कर देते हैं। दूसरा जीपी। तीसरी लेक्चरेट एंड पीजीटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो ये जो 4 टास्क है ये इंपॉर्टेंट है, बट इस चारों टास्कों से आपके कमांड टास्क फ्रेम होता है कि आप कैसे कमांड टास्क की। अब ऐसा नहीं है कि जिसको किसी को हार्ड मिला है तो हार्ड, और किसी को इजी मिला है तो वो नहीं होगा रिकमेंड। ये बहुत मिसकंसेप्शन रहता है बच्चों के अंदर कि उसको तो यार बॉम्ब टास्क मिल गया, इसके चांसेस है। उसको ये नहीं पता है कि उसने साइकोलॉजी में क्या कर रहा है, इंटरव्यू में क्या करके आ रखा है। बट दे ऑलवेज जज ऑन बेसिकली ऑन द कमांड टास्क, अच्छा इसको तो। बट कमांड टास्क इज ऑल अबाउट कि एसएसएस, व्हाट एसएसआर वांट्स टू सी इन यू, कि कुछ क्वालिटीज उनको दिखी उस चीज में, कुछ क्वालिटी नहीं दिखी। एक एक करके मैम स्टार्ट करते हैं। ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आपकी जितनी अच्छी नॉलेज होगी आप उतने अच्छे आप उसमें पॉइंट्स दे सकते हो। और आई वाज एक्सपेक्टिंग इस अटेम्प्ट में कि कुछ जियो पॉलिटिक्स आ जाए। मैं 6 महीने की पढ़ के गया था करंट अफेयर, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर कि यार कुछ तो जियो पॉलिटिक्स आ जाए। बट देयर वाज अ टॉपिक ऑन एआई, पहला जीडी का टॉपिक एआई आया था। तो जीडी के लिए मैम यही मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जितने जल्द से बोल सके वो अच्छा है। इनिशिएट अगर कोई और कर रहा है तो करने दे, अगर आप कर सकते हो तो, क्योंकि 2 3 अगर एक साथ बोलने लग जाएंगे, क्योंकि रिपीटर के बैचेस में होता है। मतलब मैंने पहले के देखे, मैंने लास्ट के 2 बैचेस जो देखे थे वो 60 टेक 64 और टेक 66। द बैच आई गॉट वाज वेरी गुड बैच, कि उसमें बच्चे सब एक दूसरे के सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को बोलने दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं। तो मैम मैं हर किसी को जीडी में यही बोलता हूँ कि वी हैव 20 मिनट्स, 10 कैंडिडेट्स,
2 मिनट ईच कैंडिडेट। तो वहां पर लोग वो नहीं सोचेंगे 2 मिनट हर एक बच्चे को मिला। अब अगर हम उसको 2 मिनट को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 30 30 30 सेकंड, वी आर नॉट एबल टू स्पीक 30 सेकंड, क्योंकि हम भी नहीं बोल पाएंगे और सामने वाला हमको भी बोलने भी नहीं देगा। तो अगर हम 20 सेकंड भी मानते तो 5 6 7 टाइम्स इनफ होता है अगर आप बोल पा रहे हो। अगर उससे ज्यादा आपके पास पॉइंट्स है, डेफिनेटली बोलो, बट मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर 5 बार ही बोल लिया, बट हाँ, मिनिमम अगर आप इतना बोल देते हो तो दैट इज इनफ। बट क्योंकि जीडी इज नॉट अबाउट कि कीप स्पीकिंग, इट्स ऑल अबाउट लिसनिंग अदर्स पॉइंट्स, ग्रैपिंग अदर पॉइंट। ग्रुप डिस्कशन जो होता है वो इन मतलब समझ ये होता है कि हम दूसरे के पॉइंट्स भी ले और उनको सुने भी। अगर वहां पर जैसे मैम एक पॉइंट्स आया था पीपीटीटी में, आपने बताया था कि वो कुछ लोग डिसएग्री हो जाते हैं उस चीज के बारे में, तो बहुत सारी चीजें होती। तो जीटीओ में मैम मैनरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, प्ले करता है। जो अगर आप किसी चीज से डिसएग्री है तो आप बोल सकते हो आई पार्सली एग्री विथ दिस कैंडिडेट या चेस्ट नंबर दिस। जैसे मेरे केस में हुआ था, तो एआई के ऊपर एक टॉपिक चल रहा था, दैट नेवी पीआर था, ही वाज अ पीआर फ्रॉम द नेवी। सो ही सेड दैट इफ टेक्नोलॉजी कम, अगर कोई टेक्नोलॉजी आती है तो वी शुड नॉट वो करके। तो फिर एक और बच्चे ने बोल दिया था, बट मुझे ये था कि हाँ मुझे इसको काउंटर करना है कि नहीं। तो आई सेड कि I partially agree with chess number 29. I believe that if any opportunity came, if we are able to learn any new technology, anything, we should learn that particular thing. द मोमेंट मतलब 20 मिनट्स के अप्रोक्स हो गया था, तो जीटीओ मेरे यहाँ पर ही साइड पे ही खड़े थे सर, एंड ही वाज लाइक मेरे को ऐसे देख रहे थे एंड वो सुन रहे थे। द मोमेंट आई स्टॉप, दूसरे बच्चे बोलने वाले थे, उसने कहा ओके ओके जेंटलमैन, लेट्स स्टॉप द टॉपिक। एंड जो नेवी का पीआर था उससे बोलते हैं अगर तेरे पास कोई नई टेक्नोलॉजी है तो सीखेगा नहीं करके, तो उसको मतलब एक काइंड ऑफ वो डांटते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जीडी में आप बोलो, ऐसा नहीं कि दूसरे काटते, बट देर एक मौका आता है आपके पास राइट। कि राइट। दूसरे लोग बोल रहे हैं, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जिसमें आप भी बोल सकते हो और लोग सुनते हैं। तो ये है कि नॉलेज बढ़ाओ उस चीज के ऊपर। नॉलेज, अगर आपको टॉपिक्स के बारे में नॉलेज होगी तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो जीडी में। सेम फॉर जीपी। प्रैक्टिस सेट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाते हैं, आप उसको लॉजिकली सोचो कि यार मुझे कौन सी प्रायोरिटी फर्स्ट देनी है। देर आर मेनी पैटर्न्स अवेलेबल इन द टेलीग्राम, या आप जान सकते हो बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं उनको लिखने के जीपी को। तो जीपी को सॉल्व करने लॉजिकली सोचो, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि यार इलॉजिकल उसमें बीच में बोल देते हैं कि यार हम ऐसा ऐसा करेंगे। प्रायोरिटाइज करो कि अगर आपके सामने एक बंदे को इंजर्ड लगी है, सीरियस इंजर है, तो आप बाकी आपके चाहे वो आग लगी हो या कुछ भी हो, कैटल्स खो गया हो, या वहां 4 बजे चोरी होने वाली हो, आपके सामने जो प्रेजेंट में बंदा है, अगर उस जगह पे हम अपने आप को रख के देखें, हम उसी को फर्स्ट एड देंगे। तो वो चीज देखो। दूसरी चीज, अगर कोई सीरियस इंजर्ड है तो उसको फर्स्ट एड आप गांव के हॉस्पिटल में नहीं दे सकते हो, वो ब्लीडिंग है, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग है। ही और सी नीड पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, या आपको एक ऐसा हॉस्पिटल चाहिए जहां पर फैसिलिटीज अच्छी मिले करके। आप उसको ये प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे नहीं ले जा सकते, क्योंकि वहां फैसिलिटी है, वो आपको हायर सेंटर पे रेफर करेंगे। माय फ्रेंड इज डॉक्टर मैम, मुझे पता है वो पर्टिकुलरली, उसने मेरे को ये सारी चीजें बताई है कि ये सारी चीजें, और ये कॉमन सेंस है मैम, बेसिक्स है कि हम प्राइमरी हेल्थ केयर में ले जाने से अच्छा अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ले आए तो वहां उसकी जान बच सकती है, रेदर देन वो सारी चीजें। तो मुझे ऐसा लगता है कि जीपी में आपको प्रॉपर एक प्लानिंग करनी होगी। सेम विद द जीडी। जीडी पार्ट में अगर आप किसी उससे एग्री नहीं करते तो उसको लॉजिकली बताए कि जेंटलमैन आई बिलीव दैट अगर हम पहले इस चीज को करें, ये चीज हमारी बाद में भी हो सकती है, जस्ट बिकॉज दिस वो जो भी ये चोरी होने वाली है वो 4 बजे होने वाली है, और प्रेजेंटली हमारे पास 3 बज के 30 मतलब 3:30 हो रहा है, तो उस टाइम हमको जो इंजर्ड पर्सन उसको प्रायोरिटी देनी है। तो जीपी में मुझे ऐसा लगता है अगर हम ऐसे चीज करेंगे तो ये बेनिफिट रहती है करके। दूसरा मैम पीजीटी। पीजीटी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें आपका वो बिहेवियर दिखता है कि आपकी एंगरनेस दिखती है, आप क्या करना चाहते हो, आपको आता है नहीं आता, छोटे छोटे टास्क होते हैं। तो मैम मेरे इसमें एक केस हुआ था कि इस अटेम्प्ट में कि सेकंड थर्ड पीजीटी चल रहा था, थर्ड वाला टास्क था। तो सर ने ये बोला कि मैं आई वाज इन द मिडल ऑफ दैट पर्टिकुलर टास्क। तो सर ने बोला ऑल ऑफ द कैंडिडेट फ्रॉम द स्टार्टिंग लाइन कम टू द एंड लाइन। तो मैंने उस टाइम पे सुना नहीं, वो मेरी गलती है, वो आप गलती नहीं कर सकते हो, तो मैं भी आगे को चले गया। सो ही सेड दैट चेस्ट नंबर 22, what did I say? So I said to move you to come forward. मैंने कहा नो सर। तो बोलता है यार कितने अटेम्प्ट हो गए तेरे? मैंने कहा ऐसा दिस इज माई 70 अटेम्प्ट। यार वही गलती बार बार तुम कर रहे हो करके। तो द मोमेंट आई रियलाइज आई सेड सॉरी सर, आई विल नॉट रिपीट दैट। ही सेड ओके सॉरी। देन द मोमेंट आई से सॉरी ही वाज वेरी काम, ओके चलो ठीक है। उसके बाद आए
इंश्योर्ड कि मुझे कोई भी एक रूल नहीं तोड़ना है, जो भी कलर रूल होते हैं, कुछ भी रूल होते हैं। और अगर आपको पीजीटी में आइडियाज आ रहे हैं तभी आप वो आइडियाज दो, अगर नहीं आ रहे कीप क्वाइट, सोचो और बाकी चीज को करने दो। क्योंकि मैम गलत आइडिया से अच्छा है कि आप आइडिया ना दो। क्योंकि बिल्कुल। इट्स नॉट अबाउट कि हम आइडिया आ गए या दे दिया हमने, या हम आगे ही हैं और तभी होगा। मैं पीछे था, मैंने आइडिया दिया, सर आस्क्ड मी कि किसने आइडिया दिया, आई जस्ट रेज माय हैंड कि मैंने आइडिया दिया, सर नोटेड इट डाउन। तो इट इज एज सिंपल एज पॉसिबल। लेक्चर भी मैम सेम हाउस जीडी की, आपको जितनी नॉलेज है आप अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हो। लेक्चरेट मैम, मैंने आप ही के उससे एक जीटीओ सर आए थे आपकी वीडियो से, मैंने एक देखा था कि ही टेल की यस नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाउ यू आर फ्रेमिंग दैट पर्टिकुलर लेक्चरेट। अगर आप कल ऑफिसर्स बनते हो तो आप वो 3 मिनट में कैसे डिलीवर करोगे। तो मैंने एक जस्ट बुक थी, एक कोई बुक थी, उसी में से एक स्टार्टिंग की लाइन थी, आई स्टिल रिमेंबर, वो कोई बच्चा यूज नहीं करता मैम। और कोई बच्चा भी उसको ऐसे सेग्रीगेट करके नहीं बताता है कि हम पहले ये बोलेंगे। सो आई स्टार्टेड कि जैसे भी होता है कि टुडे आई हैव चोजन टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक एज दिस इज इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, आई प्लान टू कवर दिस टॉपिक इनटू डिफरेंट पार्ट। अगर मैं स्टार्ट करूँ इंट्रोडक्शन से, तो मेरे उसमें टॉपिक आया था चेंजेस ऑन टेक्नोलॉजी। आई कवर्ड एवरी एक्सपेक्ट एग्रीकल्चर, फ्रॉम एग्रीकल्चर हम खोजते थे जीपीएस इनेबल्ड ट्रैक्टर, जीपीएस इनेबल्ड ड्रोन्स है, उसके बाद भी है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है ऑटोमेटिक। फिर मैं आ गया मैम डेट फॉर डिफेंस वाले में पढ़े, वी हैव दैट ओल्ड कैनन थे, नाउ पिनाका मल्टी बैरल लॉकेट सिस्टम। अरे वाह। आई कम टू टेक्नोलॉजी स्पेस, क्योंकि मैंने बहुत सारे ईसी का था तो मैंने बहुत पढ़ा था स्पेस के बारे में, इसरो के बारे में। कर लिया आपने हाँ सीक्रेट में। हाँ मैम, उस पे मैंने ये बोला कि आवर फर्स्ट सैटेलाइट वाज लॉन्च आर्यभट्ट बाय द हेल्प ऑफ रसिया रॉकेट, नाउ वी हैव जीएसएलवी पीएसएलवी मार्क लॉन्च व्हीकल। तो मैंने उसमें करंट अफेयर भी डाल दी कि हमने रिसेंटली बाहुबली रॉकेट। तो मैंने सारे एक्सपेक्ट कवर करे। हम्म। इस बार मैम मैंने आई वाज रियली सरप्राइज कि आउट ऑफ 10 कैंडिडेट सर आए। सर ने एक पेपर था, छोटा पेपर, और सर ने ये बोला आउट ऑफ टू लोगों को नहीं बोला, एक मेरे को और एक नेवी वाला जो पीआर था उसको नहीं बोला, बाकी सबको बोला कि तू लेक्चर में ये बोल सकता था। उनको मतलब एक तरह का ये बताया कि हम्म। तेरा ये चीज हुआ। तो और मुझे और वो छोड़ के, और आई बिलीव दैट दिस वाज माय वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर आई एवर डिलीवर्ड इन माय लाइफ। तो मुझे ऐसा लगा था कि हाँ, अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आप उसको सेग्रीगेट कर सकते हो तो आप अच्छा कर सकते हो इस चीज में। राइट। लाइक यू स्टार्टेड द लेक्चर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एकदम से आप जाके जब सब अपने पीयर्स को फेस करते हो तो एकदम से कॉन्फिडेंस शेक होता है। तो द वन ऑफ द बेस्ट वे इज लाइक यू डिस्ट्रीब्यूट द होल लेक्चरेट एंड यू जस्ट स्टार्ट एक्सप्लेनिंग कि आप इस तरीके से करने वाले हो। इवन दो यू कैन स्टार्ट विद अ कोट और आपके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बट दिस इज वन ऑफ द easiest way just to calm yourself down, and one you are settled in that environment, then so you can add on any of the point that you feel like adding and during the lecture, बिकॉज उसके बाद तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्डअप होता जाता है। कमल, आई एम वेरी ग्लैड दैट वी आर डूइंग दिस सेशन प्रिसाइसली जिस तरह का आपका एक्सप्लेनेशन है, आपका एक्सपीरियंस रहा है एंड द काइंड ऑफ ग्राउंडेड पर्सनालिटी यू आर। आई एम श्योर दैट अ लॉट ऑफ योर जूनियर्स आर गोइंग टू कम इन द academy and will you know especially meeting you and they will be thanking you because हर किसी का बताने का तरीका होता है, पर हर सेशन में मेरा एक मोटिव रहता है कि जितना सिंप्लीफाइड वे में बताया जा सके, डिस्कस किया जा सके, आई मीन उतना ही ज्यादा इजियर होता है। यू नेवर नो कि कौन से एक्सपीरियंस से अपनी पूरी स्ट्रैटेजी के अंदर चेंज करे, बिकॉज हर जगह से सुन के लगता है कि पता नहीं सब चीजें इंप्लीमेंट करने से शायद से हो जाए। सो हम्म। ये हर इंसान का अपना एक तरीका है। इफ आई टॉक अबाउट योर 17 attempt journey, where I've seen like you have gone through each and every aspect of life जहाँ पे it has been a roller coaster ride, I want to know what was the feeling of recommendation, because some way or the other this was something that you were waiting for a very long time, and in your last attempt when you got the recommendation, what was your feeling at that time? मैम मैं चौथे दिन काफी रो गया था, क्योंकि मुझे ऐसा था कि इससे अच्छा मैं नहीं दे सकता था। मैंने क्योंकि ये चीज सोची थी, हर टाइम में मैं ये सोचता था अरे यार यहाँ पर तो मेरे से ये गलती हो गई, यहाँ पर तो मेरे से ये गलती हो गई। बट इस टाइम में मैंने ये सोचा था मैं साइकोलॉजी वेंट वेरी वेल, इंटरव्यू वाज ठीक है, अच्छा गया है, ऐसे बात नहीं, जहाँ मुझे आया वहाँ। एंड जीटी वाज आल्सो, मैंने लेक्चर और जीडी जैसे मैंने पार्टिसिपेट किए थे और Hmm. जैसे बोले थे, तो आई वाज वेरी, कि मुझे ऐसा था कि मैं इससे अच्छा नहीं दे सकता। और मुझे ये भी हो रहा था कि यार ये मेरी लास्ट एसएसबी है, इसके बाद मैं ये सारी चीजें नहीं देख पाऊंगा कि ये Right. आना कैसे हम लोग ये चीजें करते हैं, कैसे हम लोग एक साथ रहते हैं। आई वॉज नेवर अ लाइक हॉस्टलर, तो मैं हमेशा से एक डे स्कॉलर रहा हूँ, तो वो चीज मैं बहुत मिस करता था। और मैं यहाँ जब आता था एसएसबी में कि काफी
काफी लोगों से मैं मिलता था, और हम लोग वहां पर ऐसे ग्रुप फॉर्म करते थे, बहुत लोग, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं एसएसबी के। तो जब मैम मेरी कॉन्फ्रेंस में वेटिंग चली थी, तो आई वाज लाइक अरे यार फिर से मैं बॉर्डर ये इसमें आ गया हूँ, क्योंकि मेरे 2-3 अटेम्प्ट से यही चल रहा था कि वेटिंग वेटिंग वेटिंग। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इस बार भी अगर वेटिंग चल रही है तो मैं काम रहूंगा, और जो मेरे से पूछा गया है और मैं वो पूछूंगा। तो मेरे से पहला क्वेश्चन ये कॉन्फ्रेंस में ये पूछा गया था कि कमल, विच इज दिस इज योर विच अटेम्प्ट बाय द डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर बोर्ड? So I said, sir, this is my 17th and last attempt. So he said, when will you stop? So I said, sir, I will not stop. This is my childhood dream. So he said, oh, this is your childhood dream. So he said, यार again तुम बार बार आने में लगे हो, तो तुम्हें नहीं लगता कि यार कि तुम क्या गलती कर रहे हो ये सब? तो मैंने बोला, सर, एवरी टाइम आई कम हियर, तो मैंने हर चीज एक कुछ ना कुछ सीखा है फ्रॉम द माई प्रीवियस अटेम्प्ट। तो ये सारी चीजें मैम कॉन्फ्रेंस में चलती रह रही थी। तो द मोमेंट उन्होंने सर ने आए, साइकोलॉजिस्ट सर थे, तो ही कि बोला, उनने सारे बच्चे को बताया कि दिस टाइम द रिजल्ट इज गुड, क्योंकि जो 2 बैचेस थे उस बोर्ड में, उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे। वो हमको सीएचएम सर ने भी बोल दिया था कि एसएसएस पर लाइक वो बोल रहे हैं कि यार उस लेवल का कैंडिडेट नहीं आ रहे। तो जैसे द मोमेंट वो आए, तो ही सेड कि कैसे बोले, तो उन्होंने कहा रैंडम बोलो, बच्चे ने बोला कि रैंडम सर, तो ही सेड टू टू। आई वाज लाइक फाइनली, जो इतनी सारी हसल थी लाइफ की और ये सारे जो भी था, मतलब वो फाइनली अचीव हो गया कि इट्स अ ड्रीम कम मोमेंट फॉर मी, कि राइट। अगर आप मेहनत करते हो और आप कंसिस्टेंट रहते हो, गिव अप नहीं करते हो, तो ये सारी चीजें अचीवेबल है। राइट कमल, वी हैव कम टू एन एंड। मुझे लगता है कि हमने सब तरह के सब चीजों को जस्टिफाई किया है प्रॉपरली डिस्कस करके। सो देयर इज नो टॉपिक विच इज लेफ्ट। आई फील लाइक वी हैव ऑलमोस्ट कवर एवरीथिंग, एंड थैंक यू सो मच दैट यू हैव पुट इन सो मच हार्ड वर्क फॉर दिस सेशन ऑल्सो, बिकॉज आई नो व्हेन वी वर डिस्कसिंग यू वर ऑलवेज एडिंग ऑन पॉइंट्स कि हम इस चीज पे भी डिस्कस कर सकते हैं। सो आई रियली विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड your journey so far has been so wonderful. I am sure that the upcoming journey is going to bring a lot of positive changes in your life. Thank you so much for joining me, Kamal, and I will be, looking forward to see that photo having, 2 stars on your shoulder. And I'm sure that uniform is Yes. definitely going to suit you. Thank you so much for your time, Kamal. Thank you, ma'am, for inviting me on such a great platform where I have learned a lot from this platform. I have already told you about this like inviting you a candidate for SSS की बातें सुनना, candidate के experience सुनना. So this was one of my best platform in the YouTube where I got to know about many insightful. So thank you for inviting me here, ma'am. That is so sweet of you. Thank you so much. Thanks for watching the video, and let me know in the comment section below if you have any doubts. Follow for more such content. Jai Hind.